This is the reading that today we are planning to do. This is a past exam reading actually, and the academic students might see one passage from this reading in their actual exam. Okay, might see. And a similar dinosaur reading has also been seen in the GT actual exam. Okay, so that is why I believe that the GT and the academic students, for the reading tips and tricks, there is no difference at all. The first small 4 passages of the GT reading are relatively easier. And this passage, the ones we are going to discuss now, these such passages are, that is the final and the, passage in the GT reading. And that is the same level of difficulty as you see in the academic readings. Okay. So this is the first, reading passage which we have in front of us, Terminated Dinosaur Era. So what you have to do? Yes, Karina, you want to say something? You've raised your hand. Would you like to say something, Karina? Okay. So this is the reading. So what do you do when you get a reading? You just read the name of the reading, and you go straight to the questions. Okay. And what are the questions? These are: use the information in the passage to match the people listed A to C with opinions or deeds listed 1 to 6. So there are 3 people and there are 6 opinions, and you have to match each opinion with the person who said it or with the person that opinion is related to. Okay. You see these type of questions very common both in the academic and in the GT readings. How many of you know that such questions are quite common? Yes, ma'am. आते हैं. Yes, ma'am. Okay. So what is the method of doing this? What I do, everybody has a different strategy, and many students give me their strategies. And strategies, you have to build your strategies which work for you. And that is the role of the practice that you do every day. Okay. That you will follow one strategy which works for you. So here I'm going to teach you one strategy which is there for this type of reading, this type of question. And first you just see the number of questions. There are 6 questions. 6 questions in the exam. You will have 9 minutes. Okay. So what you do first is that you take a minute or even 2 minutes, and wherever you see these 3 names in the passage, you got to underline them or to circle them. Okay. Actually, this is the PDF. I don't have the Word file somehow with me. So for me, it will be very difficult, but we'll go from paragraph to paragraph, read the names: Paul Olson, Michael Benton, Peter Ward. Wherever you see these names, you have to underline them or you have to highlight them in your reading. Okay. See in the first paragraph, do you find any name? सेकंड में है. ओके, सेकंड में है. सेकंड में हाँ, डॉक्टर पॉल ऑल्सन. ओके, इसमें कुछ हो जाएगा हाईलाइट, एडिट. पीडीएफ में कुछ आपको पता है? मैम राइट क्लिक करके देखिए ना, हाइलाइटर दिखेगी शायद. राइट क्लिक, लुक अप नहीं आती. हाँ, ओके, चलो. पॉल ऑल्सन आ गया. दिस इज इन पैराग्राफ बी. ठीक है. अब पैराग्राफ सी में देखो. चलो, सेकंड डी में कंट्रोल बी करके बोल्ड कर लो. अच्छा, कंट्रोल डी, बी कंट्रोल बी करके बोल्ड कर लो मैम. बोल्ड कर लो कंट्रोल बी करके. बोल्ड या इटलिक या फिर आप अंडरलाइन डाल सकते हैं मैम, वो शायद हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा. कंट्रोल बी. वो भी नहीं हो रहा ना मैम, पीडीएफ को कन्वर्ट ही करनी पड़े अभी ना. एक्चुअली चलो ऐसे चलते, कोई बात नहीं. डॉक्टर, आपके पास ये मॉक टेस्ट वाली रीडिंग कई बच्चों के पास तो है, पर वील रिमेम्बर दैट. यू आर यंग, यू विल रिमेम्बर. बी में एक नाम है. ओके, चलो फिर ऐसे करते हैं, हम साथ साथ देख लेते हैं जो क्वेश्चंस है ना, 6 के 6. व्हाट यू डू, द सेकंड थिंग व्हाट यू डू इज translate all these questions. Okay, read them and translate them. Who will do that? आप में से एक जना इनको पढ़ो और ट्रांसलेट करो. चलो. Should I read? Yes, please. Okay.
The first question, large animals are in the disadvantageous position when disasters happens. हाँ, तो तो large do the animal हिंदी जो disadvantage position में, हाँ, जो बड़े एनिमल्स है वो डिसएडवांटेज पोजीशन में है जब डिजास्टर होता है। जब कोई डिजास्टर होता है तो सबसे ज्यादा जो मतलब गलत मतलब जिनकी सिचुएशन सबसे खराब होती है ना वो लार्ज एनिमल्स हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। हाँ, ओके। रेडिकल आप हिंदी चेंजेस इन कर द लोगे ना कार्बन आपको समझ आ जाएगी। हाँ टाइप्स। हाँ पढ़ो। Yes, yes. Radical changes in the carbon types are related to massive extension of vegetation. हाँ रेडिकल चेंजेस जो है कार्बन टाइप्स में रिलेटेड है मैसिव एक्सटेंशन, तो मैं होना है ना, जो वेजिटेशन है बड़े ना लेवल उसकी पर जो जब विलुप्त मैसिव हो रहे एक्सटिंक्शन होती है, वेजिटेशन। जो वेजिटेशन है ना, जो हरियाली, जो ग्रीनरी है, हाँ, जो इनकी जो मैसिव एक्सटिंक्शन होती है ना, उसके साथ क्या चीज रिलेटेड है? बहुत ज्यादा बड़े चेंजेस हैं कार्बन टाइप्स के, वो मैसिव एक्सटिंक्शन जो रेडिकल, हाँ उससे रिलेटेड है। चलो आगे नेक्स्ट। okay. The change in the earth's the changes in the earth's animals species become easier to identify by adding footprint investigation. तो अर्थ में एनिमल्स के जो चेंजेस स्पीसीज हुए वो इजियर बने हैं टू आइडेंटिफाई पहचान के लिए बाय एडिंग फुटप्रिंट इन्वेस्टिगेशन, मतलब फुटप्रिंट इन्वेस्टिगेशन जोड़ के। जो अर्थ के एनिमल स्पीशीज है ना, उनमें जो चेंजेस आए हैं एनिमल स्पीशीज में, वो फुटप्रिंट इन्वेस्टिगेशन ऐड करने के बाद उनकी आइडेंटिफिकेशन इजी हो गई कि ये चेंजेस आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट। यस मैम, यस मैम। Geochemical evidence and historical impact before dinosaur. Evidence ने suggest किया है This is historical geochemical. impact. Zubair, this is geochemical. Okay, Geochemical evidence. हाँ, Okay. geochemical evidence Geochemical evidence ने सजेस्ट करता है कि एक एस्टेरॉइड का इम्पैक्ट हुआ था डायनासोर्स के अपीयर होने से पहले। ठीक है, Okay. चलो Okay. नेक्स्ट। Footprint study is the research. Footprint जो स्टडी है वो नया वे है इसका, न्यू रिसर्च का। नेक्स्ट। जुबेर, हमें आपका माइक क्यों नहीं दिखता है जब आपने लॉग इन करा है? व्हाई कांट वी सी योर वीडियो वाला वो आइकन? दो एक ही आइकन दिखता है। चलो एनीवेज, आज मेरे एक तो हेडफोन में मेरे आज पता नहीं प्रॉब्लम से चलो कोई बात नहीं। परसुएसिव क्लूज, persuasive of an LED spike for the first persuasive spike, मतलब ये जो पहले डिस्कवर करे गए थे पहली बार में। ओके चलो, अभी ना जुबेर अभी आपने अपने आप को म्यूट कर लो, थोड़ी डिस्टरबेंस है। ओके, अभी जुबेर ने सारे 6 के 6 पढ़े हैं और इनको ट्रांसलेट करा है। ये आज चाहे टाइम लगा है, पर आपको जब अपने आप एग्जाम में जो करना है तो आपको अपनी स्पीड पे 6 क्वेश्चंस को पढ़ के उनको समझ लेना है, और फिर जहां पहला नाम आया है, ऑल द 6 क्वेश्चंस यू हैव रेड नाउ wherever we labeled the first name, उसके आसपास पढ़ो, कहीं कोई आंसर आपको मिलता है पॉल ऑल्सन के आसपास। ये बी पैराग्राफ में पॉल ऑल्सन था, डॉक्टर पॉल ऑल्सन। ठीक है, अब इसकी ये यहां से स्टेटमेंट पढ़नी शुरू कर दो। अर्जुमन, मैम बी में है देयर इज geochemical signature of the sometime importance for happening the probably and एस्ट्रे वाला मैम, वो इम्पैक्ट जो था जियोकेमिकल वाला। यस मैम, फोर्थ वाला जियोकेमिकल इम्पैक्ट। यस जियोकेमिकल एविडेंस वाला सजेस्ट फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर जो है वो डॉक्टर पॉल ऑल्सन हो गया ना, पॉल ऑल्सन हो गया। ठीक है, यस मैम। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया ए है। ठीक है, चलो अब आपने ना साथ साथ मार्क कर लेना है जो जो आपको आंसर मिलता जाए। सो यू गॉट द आंसर ऑफ द फोर्थ क्वेश्चन एंड दैट इज ए। ओके, आपने क्योंकि सारे पहले पढ़ लिए थे, आपको उस नाम के आसपास पढ़ते ही पता चल गया कि दैट इज द आंसर टू दैट क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज अ टिप, हो सकता है आपके काम आ जाए एग्जाम में। मंजीत, आर यू इन द क्लास? मंजीत सिंह? यस मैम। ओके, आपको समझ आ रही है पॉइंट्स जो मैं बता रही हूँ?
Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट नेम, विच इज द नेक्स्ट नेम? सी में कोई नाम है? No, ma'am. D में. बी में क्या नाम है बताओ? Michael Benton. ओके, माइकल बेंटन, ठीक है, उसके आसपास पढ़ो माइकल बेंटन. Yes, What did ma'am. he say? Given the line, the first reasonably convincing evidence of an iridium spike. Sixth answer. ओके, इरिडियम स्पाइक. ओके, 6 क्वेश्चन का आंसर जो है वो बी है. वेरी गुड. देखो आपको ये पढ़ते ही, क्योंकि आपने पूरे आंसर्स पहले करे हुए हैं, तो आइरिडियम स्पाइक वाला जो है आपको आंसर पता चल गया कि दैट इज 6th आंसर इज बी. ठीक है, एंड दैट्स क्वाइट ma'am. करेक्ट आल्सो. ओके, एंड 6th आंसर बी हो गया, दैट इज क्वाइट करेक्ट आल्सो. चलो अगला आप देखो कि यहाँ पे नाम है. सी एनी नेम इन पैराग्राफ ई? Yes, Dr. Olson. Dr. Olson. ये फिर से डॉक्टर ऑल्सन आगे. ओके, उसके आसपास पढ़ो. It makes it very easy for us to tell the हाँ, very obvious signal of massive fauna changes. Ma'am, animal changes वाला. एनिमल चेंजेस वाला कौन सा क्वेश्चन था? Third, ma'am. And third, Third, footprint, ma'am. Third. Yes, ma'am. फुटप्रिंट investigation. Investigation. बाय एडिंग फुटप्रिंट इन्वेस्टिगेशन. यहाँ पे फुटप्रिंट इन्वेस्टिगेशन की बात हुई है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Because of the sediment piles up quickly. नीचे लिखा हुआ है मैम. फुटप्रिंट Yes, ma'am. इन्वेस्टिगेशन वाला क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है दैट इज अगेन डॉक्टर ऑल्सन, एंड दैट्स क्वाइट Olson. करेक्ट. वेरी गुड, वेरी गुड. ठीक है, अब अगला देखो, आगे नाम है किसी का इन पैराग्राफ ma'am. एफ. Yes, Dr. Peter Peter. D. Ward. Last D. time. Ward. पीटर वॉर्ड. Dr. Peter. हाँ, पीटर वॉर्ड के आसपास पढ़ो क्या लिखा हुआ है. गैलेक्सी A30 लाइनें मत बनाओ बेटा. Ma'am, I think the footprint method Footprint of the methodology is very is a novel. very novel and very ओके, नॉवल exciting. का क्या मतलब होता है? नॉवल का मतलब एक नॉवल का मतलब है जो आप नॉवल पढ़ते हो, और एक नॉवल का मतलब होता है न्यू. ओके, अब आप सारी okay. अपनी वोकैबुलरी बिल्डिंग भी करो. अगर आपको नॉवल का मीनिंग पता है कि नया है, तो आपको फिर ये आंसर भी मिल जाएगा. हाँ. A new research. New research. हाँ, Fifth तो ये answer. न्यू रिसर्च ये किसने बोला है? पीटर वॉर्ड ने. सो द आंसर इज 6. ओके, हाँ, 6 का आंसर क्या है? सी. No, ma'am. Fifth का. 5th का है? Fifth का है मैम. Sixth का तो अपनों पहले ही लिख लिया था. हाँ हाँ, 5th का, नहीं, 5th का सी है. नहीं, वेरी गुड. 5th है मैम. हाँ हाँ, ठीक है, ठीक Yeah, है. fifth. 5th का आंसर है, दैट इज सी, एंड दैट इज करेक्ट. ओके, आगे चलो. अब आपको कौन कौन से आंसर्स मिल चुके हैं? 4 आंसर्स मिल चुके हैं. मेरे ख्याल 1 और 2 रह गए हैं. Yes, ठीक है? ma'am. First- चलो अब आप बताओ, Yes, ma'am, जी first पैराग्राफ or में second? कोई नाम है? No, ma'am. No, ma'am. एच में कोई मैम, नाम इसमें है? एच में दे रखा है डॉक्टर ऑल्सन सेड. Yes, हाँ, ma'am. डॉक्टर डॉक्टर ऑल्सन ने क्या बोला? देखो. हाँ, द डायनासोर. मैम गगनदीप पढ़ो. हाँ, देखो यहाँ पे कहीं आंसर होगा कोई. Mediating वाला था. मैम फर्स्ट आएगा इसका आंसर. एडवांटेज पोजीशन व्हेन डिजास्टर हैपन. Yes, ma'am. First आ सकता है. लार्ज एनिमल्स डिसएडवांटेजियस पोजीशन में है, कहाँ पे लिखा है? There is the option one, na, extinction. That one, I guess. Not terrible. Terribly Extinction. impressive. Yeah, extinction. Extinction, there is a one predators. option. हाँ, see, 15 foot long, great knife teeth, ये सारे थे dinosaurs, but they were small. Okay, before the extinction, the largest were about the sea of large dogs, not terribly impressive. और यहाँ पे वो है that they are in the, you know, मैम आई में है इसका आंसर. हम एक्चुअली आई में है इसका आंसर. स्मॉल एनिमल्स ऑलवेज डू Second बेटर इन is- कैटास्ट्रोफिक सिचुएशंस बिकॉज़ दे कैन सर्वाइव ऑन स्मॉलर अमाउंट्स ऑफ फूड. हाँ, पर यहाँ पे भी डॉक्टर ऑल्सन ने ही बोली है ना ये बात, तो इसका Yes, ma'am. यस, तो फर्स्ट वाले का आंसर जो है फिर ए आ गया, दैट इज डॉक्टर ऑल्सन. अब एक क्वेश्चन रह गया, रेडिकल चेंजेस इन कार्बन टाइप्स आर मैम ये रिलेटेड. सी पैराग्राफ में है. ओके, मैम कैटास्ट्रोफिक का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा कैटास्ट्रॉफिक, बहुत ज्यादा बड़े स्केल पे. ओके, सी पैराग्राफ में क्या है?
रेडिकल ये जो मैम ये बात की गई है ना, लाइक रेडिकल चेंजेस इन कार्बन टाइप्स आर रिलेटेड टू मैसिव एक्सटिंक्शन ऑफ वेजिटेशन. हाँ, सी में तो मुझे मिला नहीं. मुझे भी नहीं. Let us see in some other paragraph. हम सेकंड के दे रखा है ना, कार्बन Olson and कहाँ पे है? his कार्बन की बात कहाँ colleagues, करी हुई है? स्टार्टिंग में. मैम ये सॉरी एफ में डॉक्टर वॉर्ड रिपोर्टेड दैट टाइप्स ऑफ कार्बन इन द रॉक चेंज अब्रप्टली एट दिस टाइम, हाँ हाँ. including sudden dying of plants and over less than 50 years. Yes, F ma'am. Plants are F clona- में, clona. yes, F में answer. Yes, ma'am. हाँ. See, the question मैं आपको पढ़ के बताती हूँ. Question is, radical changes in carbon types are related to massive extinction of vegetation. यहाँ पे extinction of vegetation की बात हुई है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. See, sudden dying off of plants. Sudden dying of plants is vegetation. Plants vegetation है. ठीक है? Yes, ma'am. तो कार्बन, ये टाइप्स ऑफ कार्बन तो आपको पता चल जाएगा. ये डॉक्टर वॉर्ड ने बोला है एंड दैट इज आंसर इज सी. डॉक्टर पीटर वॉर्ड इज सी. ओके, अभी हमें टाइम तो लगा है पर आपको ये क्वेश्चंस करने का तरीका आ गया. So will you? Yes, ma'am. Can you Kulraj, can you just tell that if you get such a type of questions जिसमें कोई साइंटिस्ट है या कोई नेम है और उनके साथ मैच करना है उन्होंने क्या बोला है, या कोई डेट्स हैं उनमें मैच करना है कि क्या हुआ है, तो हम ना अब वो वाला मेथड, चाहे आप 1 मिनट लगा के सारे अंडरलाइन करो चाहे नहीं करो, वो मत करो. ये बेटर मेथड लगा मुझे आज जो हमने करा है कि Yes, ma'am. हाँ, पहले सारे क्वेश्चंस पढ़ लो 6 के 6. See, you have 9 minutes after for 6 questions. पहले अपना टाइम आइडेंटिफाई कर लो, how much time you have for this set of questions. ठीक है? So first when you identify the time, because see, you have 40 questions, 60 minutes. One question 1.5 minute. 6 questions is 9 minutes. जहां पे 6 questions की ट्रांसलेशन करोगे ना आपको 1 minute लगेगा. At the most 2 minutes लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे. ठीक है? Then what you do is, जहां पे पहला नाम लिखा है उसके आसपास पढ़ो. कोई ना कोई आंसर आपको स्ट्राइक कर जाएगा कि आपने वैसी एक ट्रांसलेशन करी हुई है क्वेश्चन की. तो सीधा आपको, जैसे हमें सबसे पहला आंसर 4th का मिला, दैट वाज Yes, पॉल ma'am. ऑल्सन. ठीक है? Yes, अब ma'am. इसका फायदा पता है क्या? दिस विल सेव योर टाइम. व्हाई विल इट सेव योर टाइम? बिकॉज आप पहला क्वेश्चन जो है पहला पढ़ के पहला ढूंढते रहोगे. पहला क्वेश्चन हमें कौन से पैरे में मिला है? मेरे ख्याल बहुत पीछे जाके F में है, F में. हाँ, F में. तो आप A to F पढ़ोगे फिर जाके आपको आंसर मिलेगा. It will waste a lot of your time. So what do you do in such type of questions is you read all the questions and translate them in your language so that you know when you're reading any name that this answer you have read, and immediately you mark the answer. That will save your time. Yes, Okay? ma'am. So what you will do is you will try such type of questions and this strategy and see whether it really saves your time. Okay? What we are doing is we are just showing you the path on which you have to walk. You have to practice. Believe me, when I had to take my IELTS, I used to practice 4 to 5 readings in a day. Okay? For time management. So for time management, you have to practice and then you have to build your vocabulary. The more vocabulary you build, the easier you will start finding any reading you get. Okay? So ये हो गया. आज आपको कौन कौन से word, एक novel word पे base था answer. Novel is new. Okay? And Novel means new. catastrophic. Catastrophe. Okay. So just 1 second. I will share my dictionary and दोनों words के मैं आपको meanings कराती हूँ. See the dictionary in front of you. Novel, any other word also पूछ सकते हो. Novel, एक तो the novel you read in a read, that is novel. और एक होता है novel idea. ये adjective है. Novel is different from anything known before, new, interesting, and often something slightly strange. A novel feature. यहाँ पे novel as an adjective use हुआ है. You know what's an adjective? नाम विशेषण, जो किसी नाम की विशेषता बताए. ठीक है? किसी नाउन की. ठीक है? Job sharing is a novel concept. Okay?
सो जो दूसरा नॉवल है वो नाउन है, ये नाउन है, ठीक है, एंड दिस नॉवल इज एन एडजेक्टिव. दूसरा वर्ड था कैटास्ट्रॉफिक. कैटास्ट्रॉफी, कैटास्ट्रॉफी के ये स्पेलिंग्स है. कैटास्ट्रॉफी, a sudden event that causes many people to suffer, that is catastrophe. And catastrophic is causing a lot of damage and suffering. Natural event, कोई natural event जो बहुत damage and suffering करता है, that is called a catastrophe. Natural event होता है जैसे कोई भूचाल आ गया, या कोई आंधी तूफान, या avalanche आ गया, earthquake आ गया, like that. Okay, that is catastrophe. मैम मेट्रॉइड का मीन्स क्या होता है? Pardon? मेट्रॉइड गिवन इन द. एक मिनट, पहले गगनदीप बोलेगी. मंजीत सारे दोनों इकट्ठे बोलते हो, मुझे कुछ भी नहीं पता चला. गगन आप बोलो. Catastrophic also means disaster, no? Yeah, disastrous. Yes, disastrous. That is a synonym. Disastrous. Okay, disaster हो गया. Okay, हम मंजीत आप बोलो. मैम मेट्रॉइड एक वर्ड था इसमें ना यूज, और पता भी था. I don't get the meaning of that. Metroid. ये Yes. meteor. Okay. मैम METER. मीटियोर होता है, मीटियोर होता है पीस ऑफ रॉक फ्रॉम आउटर स्पेस. यही हुआ था ना, डायनासोर्स कैसे खत्म हुए. एक थ्योरी ये भी थी कि ऊपर से कोई मीटियोर गिरा और सारे ही मर गए. ओके ओके मैम. हाँ, तो मेट्रॉइड उससे ही बना हुआ है, ठीक है. परसुएसिव क्लू का क्या मतलब है? परसुएसिव, जो परसुएड कर ले आपको. परसुएसिव होता है एबल टू परसुएड समबडी टू डू और बिलीव समथिंग. मैं आपको मना लूं कुछ करने के लिए, मैं परसुएसिव हो गई. ओके, ठीक है. हाँ मैम इस पे एक क्वेश्चन भी था. वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाला, वो पैशनेट पे ये है ना कि हमारा क्यू कार्ड कि परस्यू, उसमें एक है कि लोग ऐसे परस्यू लोगों को जल्दी कर सकते हैं, ऐसे कुछ लोग हैं. लीडर्स, टैलेंट है, लीडरशिप क्वालिटी है टू बी परसुएसिव. ओके, मुझे इसका वर्ड मतलब नहीं पता था. ओके, नाउ 1 to 6 questions we have done. We'll see the next set of questions. True, false. मैम मैंने आपको वर्ड फाइल भेजी है, आप इसे हटा दीजिए, वो फटाफट हो जाएगी. अच्छा, थैंक यू सो मच. आपने व्हाट्सएप पे भेजी है? मैम आपको भी भेजी है, ग्रुप में भी भेजी है. अच्छा. हाँ मैम, व्हाट्सएप पे. ठीक है. Okay. Oh, thank you, Devangini. Welcome, ma'am. Okay. So ये है. Now we see the next set of questions, and the next set of questions is true, false, and not given. Okay. True, false, and not given questions में भी बच्चों को बहुत ये problem आती है. And let's do them. See, I tell you, I must have done this reading थोड़ा पहले. अभी तो बहुत देर से नहीं करी है. And my memory is now, older than my age, biological age से ज़्यादा बूढ़ी हो गई है memory. So I don't remember. I'm doing this reading. I feel I'm doing it for the first time with you. And let's do it. So true, false, not given. You read the question, see the keyword, scan your document to see where the answer is, and then try to figure out whether it is true or false or not given. Okay. First question is, the rare element iridium is present both on Earth and in meteorites. So the rare element, see, आप पहले किसी का मजा खराब नहीं करो. पहले इसके ना कीवर्ड बताओ. Iridium, okay. Iridium दोनों में है. Meteorite के कीवर्ड है और Earth कीवर्ड है. Rare element है. Okay. Now see, हम चलते हैं. कौन से पैराग्राफ में आइरिडियम की बात हुई है? हाँ, C and D पैराग्राफ. C and D पैराग्राफ. रेयर एलिमेंट आइरिडियम, रेयर की बात हुई है. Last second line पैराग्राफ. ओके. Precious metal belonging to the platinum group of elements. Iridium is more abundant in meteorites than in rocks. ठीक है. मैंने इसका आंसर false लगाया था. Yes, ma'am.
आपने फॉल्स लगाया था? Not given. No, ma'am, it's Not true. given. अच्छा आप बताओ, It's true. आप बताओ, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं दोबारा बोलती हूँ. क्वेश्चन है, द रेयर एलिमेंट इरिडियम इज प्रेजेंट बोथ ऑन अर्थ एंड इन मीटियोराइट्स. अब आपको यहाँ से पता चल रहा है कि मोर अबंडेंट इन मीटियोराइट्स में ज्यादा है रॉक से. रॉक्स तो अर्थ में है और मीटियोराइट्स अभी हमने करे जो स्पेस से आए हैं. ठीक है, अब जो ये रेयर एलिमेंट है ये दोनों में है. इन्होंने बोला है कि मीटियोराइट्स में ज्यादा है, रॉक्स में कम है, पर है तो है ना. Yes, ma'am. तो फिर आंसर क्या होना चाहिए? True, yes, true होना चाहिए. ट्रू होना चाहिए. अब आप बताओ आपने फॉल्स क्यों लगाया था? अबंडेंट था ना मैम. अबंडेंट. नहीं मैम, वो कह रही है कि रियर. हाँ हाँ, इसमें तो बोला है ना कि दोनों इक्वल है, तो इसमें पैराग्राफ में बोला है ज्यादा है मीटियोराइट में है रॉक से. अच्छा, तो फॉल्स नहीं होगा. क्वेश्चन में इक्वल वर्ड कहाँ बोला है? क्वेश्चन में इक्वल वर्ड है ही नहीं. मैं क्वेश्चन दोबारा पढ़ रही हूँ. क्वेश्चन है, द रेयर एलिमेंट इरिडियम इज प्रेजेंट बोथ ऑन अर्थ एंड इन मीटियोराइट्स. इक्वल वर्ड तो है ही नहीं. इक्वल मतलब होता परसेंटेज में actually the परसेंटेज question कुछ भी हो demand- सकती है, बट question दोनों में is- है. कहने का क्वेश्चन मतलब इज ये है. सेइंग कि इरिडियम मटेरियल जो मेटल है वो अर्थ में भी है एंड मेट्रोइड्स में भी है. हाँ, तो ये चीज तो दोनों में सामने ही बता रहा है. ऑन अर्थ अ सिमिलर स्पाइक ऑफ इरिडियम इन 65 मिलियन. यहाँ मतलब यहाँ से तो क्लियर हो रहा है कि अर्थ में भी है. तो यहाँ मेट्रोइड्स का भी बता रहे हैं कि मेट्रोइड्स में भी इरिडियम होता है. हाँ, तो देखो अब तो दोनों में है. मतलब होता है तो इट हाँ. मीन्स ट्रू है. हाँ, और अगर मेरी बात सुनो, अगर यहाँ पे इक्वल वर्ड होता, अगर इक्वल वर्ड होता तो भी आंसर फॉल्स नहीं होता, नॉट गिवन होता. यस मैम, तो फिर कंपेयर कर रखा है ना, क्योंकि यहाँ इसमें इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता अकॉर्डिंग टू द पैसेज. समझ गए? तो फिर Ma'am, if there is a equal word in question, then ma'am, same sentence is given. Ma'am, then what will be the answer? if equal word is there in the question, then the answer will be not given. वही मैं समझा रही हूँ आपको. Why it will be not given, वो भी समझ लो बात. अब क्वेश्चन पैसेज कह रहा है कि दोनों में है, अर्थ में भी है और मीटियोराइट्स में भी है. समझ गए? और क्वेश्चन सुन लो मेरी, पहले मुझे बोल लेने दोगे ना 1 मिनट, उसके बाद आप मैम करना. क्वेश्चन पैसेज कह रहा है कि रेयर एलिमेंट इरिडियम इज देयर इन द अर्थ एंड इट इज देयर इन द मीटियोराइट्स. ओके, पैसेज अगर आप कह रहे हो कि क्वेश्चन कहता कि इक्वल है, तो इक्वल वर्ड पैसेज में नहीं है. इसका मतलब इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. तब आंसर नॉट गिवन होगा. अगर किसी चीज का आंसर ऐसे आए कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो आंसर विल बी नॉट गिवन. ये स्ट्रैटेजी याद रखना. ओके, मैं आपको मैम आई थिंक मैम दिस विल कॉन्ट्राडिक्ट द सिचुएशन. क्वेश्चन में कंपैरिजन नहीं हुआ था, तो आई जस्ट मेक इट नॉट गिवन. सो दैट्स व्हाई आई एम कंफ्यूजिंग दिस क्वेश्चन. नहीं, व्हाई इट विल नॉट बी फॉल्स? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो आपके सामने है, आंसर यस है और वो ट्रू है और वो आंसर में कोई डाउट ही नहीं है. यस मैम, दैट इज क्लियर. इट्स वेरी वेरी क्लियर. अभी आपको मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रही हूँ कि अगर इक्वल वर्ड होता क्वेश्चन में, और आपके जो पैसेज है उसमें सिर्फ ये है कि दोनों में है, इक्वल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, देन द आंसर विल नॉट बी फॉल्स, इट विल बी नॉट गिवन. यस मैम. मैम अगर ऐसे होता भी मोर इन लाइक दे हैव गिवन इरिडियम इज मोर अबंडेंट मैम, देन इट विल कॉन्ट्राडिक्ट आई थिंक. अच्छा, इन्होंने मोर लिखा है, मोर लिखा है. यस मैम, मोर. यस मैम. इक्वल होता फिर फॉल्स होता, देन द आंसर वुड बी फॉल्स. यस मैम. Yes ma'am, that's what I was. आंसर विल बी फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे मोर लिखा है. अच्छा, मैंने ये मोर अभी मैंने इग्नोर करा. चलो, आपको सारी सिचुएशंस पता चल गई. Yes mam, yes ma'am, it's clear now. अगर ये मोर वर्ड नहीं होता तो फिर आंसर वुड बी नॉट गिवन. अच्छा, सपोजिंग एक क्वेश्चन है, पैसेज में दिया हुआ है that ताजमहल इज वन ऑफ द 7 wonders of the world, and the question is Taj Mahal is the first of the 7 wonders of the world. False ma'am. Not given. Not given. Most कहाँ लिखा है? एक मिनट. Not given. They haven't mentioned it. फर्स्ट है कि नहीं है, नॉट गिवन आंसर आएगा.
समझ Not गए? given. Yes, Yes, ma'am. yes, yes, ma'am. Okay. समझ गए? ये Yes, सेम yes, ma'am. सेम फंडा पे है ना, वो नॉट गिवन हो जाएगा क्योंकि 1 of the 7 है, फर्स्ट है कि नहीं है, हो भी सकता है, Yes, नहीं भी ma'am. सकता। They have समझ गए? not provided the हाँ, then information. it Yes, is ma'am. not given. Let's go to Yes, the question number 2. Question number, sorry, 8. The meteor impact theory had been suspected before the discovery of the impact site and other supporting evidence. अब ये जो मीटियोर की इम्पैक्ट की थ्योरी है, इसकी शुबा, इसकी शंका पहले ही कर ली थी। इम्पैक्ट की साइट को देखने से पहले ही, वो डिस्कवर अभी बाद में हुई है इम्पैक्ट साइट, और सपोर्टिंग एविडेंस भी बाद में मिला है, पर ये थ्योरी की मतलब मन में पहले ही उनको उठ गया था कि डाउट आ गया था कि ये थ्योरी है। ओके, सो लेट अस गो टू द मीटियोर इम्पैक्ट थ्योरी। वेयर इज इट? मैम डी में सेकंड लाइन में, डी में सेकंड लाइन। ओके, थ्योरी है। यस मैम। Yes, ma'am. Okay, the theory that a meteor caused the demise of the dinosaurs, the theory remained controversial for years until it was corroborated by other evidence. अब देखो, theory पहले थ्योरी पहले ही थी और थ्योरी कंट्रोवर्शियल रही बहुत सालों के लिए, ठीक है? तो इसका मतलब आंसर क्या होना चाहिए? नॉट। अच्छा, क्वेश्चन, मेरी बात सुनो, क्वेश्चन पढ़ो दोबारा। The meteor impact theory had been suspected before the discovery of the site. अब meteor impact theory पहले ही थी है मैम। Yes, ma'am, true है, until it was. हाँ, तो पहले थ्योरी थी, It was controversial. मतलब कंट्रोवर्सी का क्या मतलब है? कुछ लोग कहते थे हाँ, कुछ लोग कहते थे नहीं। Yes, ma'am. ठीक है, डाउटफुल रही until it was corroborated by other evidence. Corroborated means supported by other evidence. जब तक इसको और evidence नहीं मिला। अब corroborate word लिखो, अपनी सारी vocabulary building करा करो हर reading में से। Till you do that, the improvement in reading finally will not happen. Okay? Okay, ये अब आपको ट्रू समझ आ गया ना, ये आंसर क्यों ट्रू है? Okay, next we go to the next question. Footprints are of little value in providing information in comparison to fossil bones because individual species cannot be identified with footprints. अब वो कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है फुटप्रिंट्स की कोई वैल्यू नहीं है इंफॉर्मेशन देने में अगर फॉसिल बोन्स से कंपेयर करें, तो फॉसिल बोन्स की ज्यादा वैल्यू है। ये क्वेश्चन ये कह रहा है क्योंकि फुटप्रिंट से स्पीशीज को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। तो ये स्टेटमेंट कह रही है कि फुटप्रिंट्स की लिटिल वैल्यू। लिटिल का क्या मतलब है? नो मैम। हाँ, थोड़ी सी किसने बोला? नो, सॉरी a little होगा मैम, then that will be minor. चलो, जो नए बच्चे उनके लिए बता देते हैं। Little, a little and quite a little. Little means no, a little means थोड़ा सा, and quite a little means बहुत ज्यादा। ऐसे ही few, a few and quite a few reading में help करेंगे ये strategy। Few means थोड़े से, a few means no, a few means थोड़े से and quite a few means बहुत ज्यादा। ठीक है? Yes, ma'am. अच्छा, चलो अब अंदर चलते हैं और देखते हैं इसके कीवर्ड्स देख लो। फुटप्रिंट्स, फॉसिल, ई पैराग्राफ मैम। ई, ओके, हाँ जी, ओके। ई में देखो मैम, ई में फर्स्ट लाइन में the scientists found more evidence of rapid extinction in a database of 10,000 fossilized footprints in former lake basins from Virginia. Although individual species cannot usually be identified solely from footprints, the tracks of a house cat, for example, resemble those of a baby tiger. Footprints are much more plentiful than fossil bones. Yes, ma'am. तो फिर आंसर क्या होगा? ये कह रहे फुटप्रिंट्स बहुत ज्यादा है फॉसिल बोन से, तो फिर ये ज्यादा वैल्यू फॉल्स है मैम। फॉल्स। हाँ, वेरी गुड, आपको समझ आ गया फॉल्स है। अगर आप अगर मेरी बात सुनो, अगर आप क्वेश्चन की अच्छे से हिंदी करोगे ना, ठंडे दिमाग से, पहले टाइम लगा के, तो आपको आंसर एकदम से समझ आएगा। ठीक है? तो वो करना बहुत जरूरी है, उसको स्टडी करना। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखो। According to scientists, the transition to a dinosaur-dominated era
took place very quickly by geological time scales. Scientists के हिसाब से जो ट्रांजिशन थी डायनासोर डोमिनेटेड एरा, मतलब बहुत जल्दी हुई ट्रांजिशन, मतलब एक ऐसा समय आया जब डायनासोर्स ने डोमिनेट करा और वो जो चेंज था, ट्रांजिशन होता है चेंज, वो बहुत जल्दी हुआ, वेरी क्विकली, वेरी क्विकली। तो लेट्स सी, हमने हिंदी कर ली अच्छे से, कौन से पैरे में चले आंसर? ट्रांजिशन, डायनासोर डोमिनेटेड एरा, देखो कहाँ पे आंसर? मैम एफ में सेकंड लाइन में लिखा हुआ है मैम, बी पैराग्राफ आई गेस। The tracks of several major reptile groups continue almost up to the layer of rock marking the end of the Triassic geologic period 202 million years ago, and then vanish in younger layers from the Jurassic period. I think the footprint methodology is very novel. Okay, यहाँ पे तो मुझे नहीं लगा आंसर। मैं जी पैराग्राफ जी में देखो। Okay, यहाँ पे चेंज की बात की हुई है। The changes the researchers said occurred within 30,000 years, a geological blink of an eye. True. Yes, ma'am. True. True, ma'am. True. Geological टाइम के हिसाब से देखें तो जो 30,000 years है ना, वो जियोलॉजी के बेस पे इतनी जल्दी है जैसे एक आँख का झपकना, blink of an eye. It was so quick. Okay. So geological blink of an eye. So the answer is true. Question कह रहा है the transition to a dinosaur dominated era took place very quickly by geological time scale. So ये geological time scale है, geological blink of an eye. Okay. Geological time scale हो गया. ठीक है, और ये very quickly है, उनकी blink of an eye है तो very quickly है. Blink of an eye, आंख का झपकना, पलक झपकना, पलक झपकते ही change हो गया. Okay. ये समझ गए? अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है the creatures that disappeared in the extinction were dominantly the नहीं आना यहाँ पे, were dominantly the 15-foot long Ruasians and large crocodiles. जो creatures disappear हुए extinction पे वो dominantly 15 फुट लंबे ये थे, नाम है Ruasians and large crocodiles. Okay. जो डिसअपियर हुए, चलो देखो अब डिसअपियर कहाँ पे आंसर? पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन. Okay. Among the creatures that disappeared in the extinction were the dominant predators at the time, 15-foot-long Ruasians with great knife-length teeth and phytosaurs that resemble large crocodiles. Question कह रहा है, question कह रहा है कि dominantly ये थे 15 फुट लंबे जो क्रीचर्स वैनिश हुए, तो वो डोमिनेंटली ये नहीं थे जो वैनिश हुए, सबसे ज्यादा ये वैनिश नहीं हुए, ये उस टाइम के डोमिनेंट प्रेडेटर्स थे। यहाँ पे ये वर्ड देख के आप प्रूव नहीं कर प्रेडेटर्स है। यस मैम, उस टाइम के ये डोमिनेंट प्रेडेटर्स थे, पर ये डोमिनेंट प्रेडेटर्स थे, ये उस टाइम एक्सटिंक्ट हुए, पर ये डोमिनेंटली एक्सटिंक्ट हुए कि नहीं हुए, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। Ma'am, also they have written that resemble large crocodile. Ma'am, actual में वो crocodile नहीं थे, I think they resembled like. they resembled. और फिर इसका मतलब आंसर क्या होएगा? Not given. Not given है, और resemble actual large crocodiles नहीं थे, not given है। हो सकता है crocodiles भी extinct हुए हों, उसके बारे में लिखा नहीं है, तो आंसर क्या है? Not given है। ठीक है। Ma'am, what is the meaning of predator? Predator होते हैं जो दूसरे जानवर को खाते हैं, जो बड़े जानवर छोटे को खाते हैं, उनको predators कहते हैं। ठीक है। Ma'am, is that same with prey? Preying something? नहीं, prey तो जो शिकार करते हैं। Okay. हाँ, पर उसी से वर्ड बना है, देखो। Predator, predator, an animal that kills and eats other animals. ठीक है? Yes. The relationship between predator and prey. Prey जिसको predator खाता है वो उसका prey है। मैम उसका, okay मैम। हाँ, समझ गए? अब देखो, शेर का prey हो गया हिरन,
किरण, ठीक है? ओके मैम। और जो हमारे ये जो कीड़े मकोड़े हैं, इनका ये बैट है और यहाँ पे वो आ गए इंसेक्ट्स। शिकारी का शिकार। शिकारी का शिकार, समझ गए? सही। मैम, हाँ जी मैम। हाँ जी, बोलो बोलो। मैम 11th one is false. हाँ, अभी जो किए ना अपन वो false है, not given नहीं है. 11 Yes false ma'am, है? I was also thinking. अच्छा, Yes ma'am, I think contradict क्योंकि वो कर गया ना. resemble They करता था said that large crocodile का. हाँ मैम, वो yes resemble करता था नहीं, but yes ma'am. In question they said it was actual crocodile, but in passage it was just resembling resembled that. Raj. it was not Yes, actual ma'am. crocodile. Okay. Yes, So ma'am. I stand corrected here. Yes, you are right. The answer is false. It is contradicting. So the answer is false. Yes, I stand corrected here. Okay. The creatures that disappeared in the extinction were dominantly the 15-foot long Russians and large crocodiles. They were not large crocodiles. They resembled large crocodiles, and they were not dominantly those. They were just dominant predators at that time. Okay. So the answer is false. I do stand corrected here. I'm sorry for that. Next question, 12th. Read the question. Tyrannosaurus rex was larger in body size than other carnivorous dinosaurs. ये जो Tyrannosaurus था, ये बाकी carnivorous dinosaur से बड़ा था. देखो कौन से पैरे में है In the इसका? size of Not the given, H ma'am. में last second line. Okay. Larger feet can carry. Bigger bodies. The scientists infer the dinosaurs doubled in weight, eventually evolving into fearsome velociraptors, Tyrannosaurus rex and other large carnivorous dinosaurs. तो ये सारे जो थे, ये fearsome, ज्यादा fearsome थे और ज्यादा double in weight हो गए. तो इसका जो इसके बारे में लिखा है कि ये बाकी कार्निवोरस से ज्यादा बड़ा था. नहीं कंपैरिजन नहीं दे रखी है. नॉट गिवन. यहाँ पे नॉट गिवन है. ठीक है. राइट, नॉट गिवन ही आंसर. जी मैम. ओके, नेक्स्ट आ जाओ. लार्ज डायनासोर्स डाइड. क्वेश्चन देखो. लार्ज डायनासोर्स डाइड आउट बट स्मॉल वंस इवॉल्व्ड एंड competed with birds and mammals. लार्ज वाले मर गए बट छोटे वाले इवॉल्व हुए और बढ़ते गए और फिर बाकी बर्ड्स और मैमल से उन्होंने compete करा. ओके, यहीं पे कहीं होगा. लार्ज आई में फर्स्ट लाइन. The spurt in evolution is similar to the rise of mammals after the extinction of mammals no larger than small dogs during the age. Diversified into tigers, elephants, whales. The success of dinosaurs after the Jurassic extinction may be why they did not survive the second extinction. Small animals always do better in catastrophic situations. And he also pointed that scientists now believe that small dinosaurs did survive. We just call them birds, he said. अच्छा, पर ये है कि वो जो छोटे इवॉल्व हुए और बाद में बर्ड्स और मैमल्स को नॉट गिवन. नहीं ये तो है ही नहीं, इन्फॉर्मेशन ही नहीं. ये भी नॉट गिवन हो गया. ये भी नॉट गिवन. ठीक है. Okay, so we've done one passage and we are going to do the second passage. Anybody getting bored? No ma'am. No ma'am, it's much quite more interesting. interesting ma'am. Yes ma'am. Ma'am, we'll do last paragraph, ma'am. लास्ट भी करेंगे अर्जुमन. आज मैं छोड़ूंगी. हाँ करा दो. Yes ma'am करा. खुद से करा दो आप. We'll do second and we'll also do the third. Don't worry. ठीक है. Okay ma'am. The second passage is detection of a meteorite lake. अब कोई meteorite lake है, उसकी detection हुई, वो ढूंढी गई. Meteorite lake का नाम से आपको पता चल रहा है meteorite lake क्या है. Meteorite ऊपर से कुछ गिरा. बड़ा सा meteorite. और वो कम से जमीन पे उसने एक वो डिप्रेशन कर दिया और उस डिप्रेशन में पानी इकट्ठा हो गया, वो लेक बन गई. तो ये हो गई मीटियोराइट लेक. ठीक है. हाँ मैम. समझ आ गया. मीटियोराइट. हाँ. ओके. अब ये क्वेश्चन है. सबसे पहले ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है और उसके बाद एक डायग्राम लेबलिंग है और उसके बाद समरी कंप्लीशन है. चलो नए नए क्वेश्चंस करने को मिल रहे हैं. डायग्राम लेबलिंग, समरी कंप्लीशन, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन तो अभी हमने करे हैं, पर हम ये वाले भी करते हैं. लेट्स सी. ओके,
एंड Yes, ma'am. सबसे पहला क्वेश्चन है with the investigation of the lake, scientists may predict the climate changes in the future. अगर ये जो लेक की इन्वेस्टिगेशन करी जाए तो हो सकता है साइंटिस्ट प्रिडिक्ट करें कि फ्यूचर में क्या क्लाइमेट चेंज होने वाला है. ओके, विद द Yes, ma'am. इन्वेस्टिगेशन ऑफ द लेक. लेट अस गो एंड सी. ए पैरा में देखो कहीं Yes, इन्वेस्टिगेशन ma'am. लेक की बात. फ्यूचर क्लाइमेट चेंजेस की बात हुई है ए में. अच्छा, Last Okay. second line. Okay. Nestled Ma'am, in the this heart of information Karnal Yes. Lake holds an untapped reservoir of information. Lake में एक untapped reservoir of information है that could help scientists predict future climate changes by looking at evidence from the past. True. True, ma'am. Okay, ये true है. Very good. आप सबको समझ आ गया. अभी मेरे मन में एक बात आ रही है. आप ये reading ऐसे कर रहे हो. ये actual exam reading है, past exam reading. I really Yes, wish ma'am. आपको इसमें से कोई एक आध पैसेज आ जाए. किसी ना Yes, किसी ma'am. को एक पैसेज तो इनमें से ना कहीं बहुत सुनने को मिला है कि एक पैसेज आ गया बुक से. ठीक Yes, है. ma'am. सो ये आई रियली विश कि आ जाए. और ये जो डायनासोर्स वाला है तो वो तो मुझे ये डाउट है कि जीटी में भी डायनासोर्स बड़े बच्चों ने आके बोला था मैम लास्ट पैसेज डायनासोर्स का था. तो अगर ये इनके है तो डेफिनेटली वो लास्ट पैसेज वो हो सकता है उनका भी वही हो. ठीक है. सो पास्ट एग्जाम रीडिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू डू फॉर ऑल ऑफ यू. अब पहला आंसर ट्रू मिल गया हमें. नेक्स्ट लेट्स गो टू द सेकंड क्वेश्चन. Second question is, the crater resulted from a meteorite impact is the largest and most preserved one in the world. वो दुनिया का सबसे largest है और सबसे ज्यादा preserve किया गया crater है. Crater पता है क्या होता है? पता है? जब meteorite नीचे गिरा उसने जो खाई बनाई उसको crater कहते हैं. Okay. Okay? The crater resulted from a meteorite. देखो अगर आपको crater का मतलब भी नहीं पता था ना तो आपने ये वाला अगर रिजल्टेड फ्रॉम ए मीटियोराइट जो मीटियोराइट के असर से बना समझ गए तो आप इसका मीनिंग गेस भी करते तो आ जाता. द क्रेटर रिजल्टेड फ्रॉम ए मीटियोराइट इम्पैक्ट इज द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट प्रिजर्व्ड वन इन द वर्ल्ड. सबसे बड़ा है एंड मोस्ट प्रिजर्व्ड है. लेट्स गो टू द पैसेज नाउ. मैम बी पैराग्राफ थर्ड लाइन. Okay, the resulting crater is one of the largest. अब बताओ, मैंने आपको ये फंडा अभी बताया समझाया. ये कह रहा है one of the largest है मतलब काफी लार्ज है उनमें से एक है. क्या ये सबसे लार्ज है? हो सकता है और नहीं भी हो सकता. मैम उसका क्या डिफरेंस है वन ऑफ द. हाँ मैं बता रही हूँ ना. देखो दूसरे लार्ज की बात नहीं की ना इसने. मैं एक मिनट मैम प्लीज आप म्यूट एवरीवन, वी आर नॉट हियरिंग यू. ओके ओके. वन ऑफ द लार्जेस्ट का मतलब है सपोजिंग दुनिया के 10 बड़े बड़े क्रेटर्स बने हुए हैं. ये उनमें से एक है. क्वेश्चन कह रहा है ये सबसे बड़ा है. अब सबसे बड़ा हो भी सकता है क्योंकि टॉप वाले 10 में से है. सबसे बड़ा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. हो सकता है दूसरे नंबर का हो सकता है तीसरे का हो. समझ गए फंडा? यस मैम. सो आंसर विल बी Not given. Not See, given. When the answer may be, may not be, हो सकता है नहीं भी हो सकता तो आंसर इज नॉट गिवन. ठीक है. पैसेज कह रहा है कि सबसे बड़े वालों में से एक है और क्वेश्चन कह रहा है सबसे बड़ा है. तो हो सकता है सबसे बड़ा हो सकता है ना. अगर सबसे बड़ों वालों में से एक है सबसे बड़ा भी हो सकता है और ये भी हो सकता है नंबर 2 होए, नंबर 3 होए, नंबर 4 होए. ठीक है. मेरे पास एक क्वेश्चन है. हाँ बोलो. मैम जैसे जो होती है ना डिग्रीज होती हैं उनमें जब एक तो लार्जेस्ट का रूल होता है. हाँ. एक वन ऑफ वाला रूल होता है. वो दोनों अलग अलग वे में आते हैं. नहीं लार्जेस्ट एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट है. देखो वन ऑफ द बिगेस्ट बिग है. हमने कहा कि ये 10 सबसे बड़े हैं दुनिया के. ठीक है. मैम वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रू बट द बिगेस्ट आ जाए तो हो सकता है ना द बिगेस्ट भी हो और ये भी हो सकता है नंबर 2 3 हो तो नॉट गिवन है. आइल्स में ये फंडा पकड़ लो. ओके मैम. अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है वन ऑफ द लार्जेस्ट और पैसेज में लिखा हुआ है वन ऑफ. क्वेश्चन में लिखा है लार्जेस्ट और पैसेज में है वन ऑफ द लार्जेस्ट. ओके. तो
तो नॉट गिवन आएगा। हाँ अगर क्वेश्चन में लिखा होगा वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड पैसेज में भी लिखा हो वन ऑफ द लार्जेस्ट तो वो ट्रू है। ट्रू हो जाएगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, या मैम थैंक तब वो शायद पैसेज में ऐसा लिखेंगे कि वो 5वें नंबर पे है। हाँ फिर लार्जेस्ट होगा तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये हाँ। क्वेश्चन पैसेज में लिखा हो सकता है सेकंड लार्जेस्ट। ओके, तो फिर हो सकता है Ma'am, कि if they provide this one of the largest in question, if they ask like this, वन and ऑफ द लार्जेस्ट ma'am, है और अंदर लिखा हुआ है लार्जेस्ट है, तो फिर yes ma'am, फिर तो ट्रू true, ही है। yes, हाँ हाँ okay ma'am, yes ma'am. ठीक है, पर ऐसे होएगा ही नहीं क्वेश्चन, ऐसे ही इस बेस पे क्वेश्चन डालते हैं और ये क्वेश्चन आता है ऐसे ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में। आई थिंक यू इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ। Yes ma'am, मैम it is clear now. यस अगर अभी आपने बोला इफ दे मेंशन सेकंड और थर्ड लार्जेस्ट तो आंसर विल बी फॉल्स, राइट? हाँ, अगर कहा है कि सेकंड लार्जेस्ट है और क्वेश्चन में लार्जेस्ट है फिर तो फॉल्स है स्ट्रेट अवे, ओके मैम, है ना? क्लियर। हाँ ओके देखो अंदर लिखा है कि दूसरे नंबर का और क्वेश्चन कह रहा है कि पहला है, तो गलत ही हो गया ना स्ट्रेट अवे। ओके मैम। ठीक है, हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। The water stored in the lake Bostumtwi goes only by seeping through the lake sediments. जो वाटर जो है लेक का वो कहाँ जाता है? गोज ओनली बाय सीपिंग थ्रू द, जो लेक के जो सेडिमेंट्स हैं, जो लेक के नीचे जो सेडिमेंट्स बैठे हुए हैं उनके थ्रू सीप कर जाता है, वहां से जाता है। ओके, अब देखो क्वेश्चन, वाटर जो है लेक, वो लेक की बात कौन से पैरे में हुई है? मैम सी पैराग्राफ। सी पैराग्राफ। Yes Okay. ma'am. See. Okay, streams flow into the lake, Shaw says, but the water leaves only by evaporation. वाटर जो है वहां से कैसे लीव करता है? या तो इवेपोरेशन होती है, मतलब भाप बन जाती है पानी की, और बाय सीपिंग थ्रू, मतलब दो तरह से वाटर लीव करता है। और क्वेश्चन कह रहा है, मैम एक बात बोल रही है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन कह रहा है ओनली, ये ओनली वर्ड की वजह से आंसर क्या है? नो आएगा, फॉल्स। अगर ये ओनली वर्ड है तो आंसर फॉल्स है, समझ आ गया ना? ओनली, सिर्फ। यस Ma'am, if there will be not no only written, then it true. Yes ma'am. Okay. जिसमें अगर ओनली नहीं होता तो भी ट्रू होता है। हाँ True होता। ठीक है। Historical climate changes can be detected by the analysis of the sediment in the lake. जो historical climate changes हैं, जो climate changes historically हुए हैं, वो अगर sediment, lake के sediment को analyze करो, analysis करो उसका, तो उससे डिटेक्ट किए जा सकते हैं historical climate changes. ओके, देखो कौन से पैरे में है? historical climate changes की बात करो। Ma'am, see paragraph में. Okay. The record of those changes is hidden in sediment below the lake bottom. तो ये जो changes हुए हैं, वो जो sediment है लेक के bottom पे, लेक के नीचे जो sediment है, उसमें वो changes जो है वो उसमें hidden है, उनमें से ढूंढे जा सकते हैं changes. Okay, the lake is one of the best sites in the world for the study of tropical climate changes. Okay. Yes. तो आंसर क्या होना चाहिए? True. True. Very good. I think it is true. It should be true. Can you repeat again? हाँ बिल्कुल। 17 क्वेश्चन दोबारा पढ़ो। डिटेक्ट मैम, जो क्वेश्चन डिटेक्टेड का मतलब क्या होगा मैम? डिटेक्ट करना मींस ढूंढना। डिटेक्टिव क्या करता है? डिटेक्टिव क्या करता है बताओ? ढूंढता है चीजें। हाँ, इन्वेस्टिगेशन, जासूसी करता है, जासूसी। जासूसी तो डिटेक्ट करना मतलब ढूंढना। और मैम वहाँ हिडन दे रखा है मैम। हाँ, वहाँ आंसर में हिडन दे रखा है मैम। नहीं, वो भी हिडन चीजों की ढूंढेगा। हिडन है तो वहां से ढूंढ सकते हो ना, उसको एनालाइज करके। वो छुपा हुआ है, आप एनालिसिस करो, मिल जाएगा ना। ओके ओके ओके, हाँ समझ गए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। The greatest obstacle to research of scientists had been the interference of the locals, by the locals, due to the indigenous beliefs. Due to the indigenous beliefs. Okay, the greatest obstacle, जो सबसे बड़ा obstacle
to research of scientists had been the interference by the locals. जो local लोग थे उन्होंने interfere करा, ये उनकी सबसे बड़ी obstacle थी research की. Okay, this is question 18th. आगे देखो सबसे बड़ा obstacle क्या था research का, देखो कौन से पैरे में है. जी, okay. बैरियर लिखा हुआ है, कल्चरल बैरियर, रुकावट, लास्ट लाइन में जी में लिखा हुआ है. Problems that arose are primarily non-scientific, tree stumps, fishing nets, cultural barriers, and occasional misunderstanding with local villagers. और कभी कभार misunderstanding. तो कभी कभार misunderstanding है और question कह रहा है सबसे बड़ी obstacles. False. हाँ, ये तो सबसे छोटी obstacle हो गई ना, occasional word की वजह से. Occasional means कभी कभार वाली. Okay. Yes. What is indigenous? मैं बताती हूँ. Indigenous बता. Occasional है happening or मैम वो नेटिव होते हैं, but not often. Indigenous तो होता है. मैम वो स्वदेशी को नहीं कहते मूल निवासी होते हैं या कोई देश के लोग. Indigenous होता है belonging to a particular place rather than coming to it from somewhere else. उस जगह का वो हो गया ना नेटिव. Native. Okay, thank you, ma'am. Okay, ये हो गया. Then next question देखो, true false not given हो गए. ठीक है, तो ये अच्छा ये great, तो आपको पता चल गया ये false क्यों है, समझ आ गया ना? Yes, ma'am. अब ये देखो ये डायग्राम है, ठीक है. डायग्राम लेबलिंग मैं आपको एक टिप दे रही हूँ, अगर आपके क्वेश्चन में डायग्राम लेबलिंग आ गई, ये क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं, प्रोवाइडेड आप इनको जो इनका रिक्वायर्ड टाइम है वो दे दो और अच्छे से ढूंढ लो. समझ गए? इसके लिए तुक्के वाला टाइम मत बचाना. ट्रू फॉल्स नॉट गिवन बाद में कर लेना, डायग्राम लेबलिंग है पहले कर लेना. ओके मैम. अगर आप इसको टाइम देके करोगे तो ये 110% करेक्ट जाएंगे. अगर इनको इनके लिए टाइम नहीं बचाया, हफड़ा दफड़ी में करे तो गलत होएंगे. मैम कई बार इसमें आते होते हैं नो मोर देन 3 वर्ड और नो मोर देन 2 वर्ड, तो कई बार अपने एक्स्ट्रा लिख देते हैं, वो गलत हो जाते हैं. हाँ, गलत हो जाता है. एक्स्ट्रा नहीं लिखना, आपको उसका मीनिंग निकालना है अच्छे से. ठीक है, अब देखो, अब पहले इसको अच्छे से समझ लो. देखो पहले तो मैंने ये ढूंढा था नेट से, तो मेरे को डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आई. मैंने फिर ये अपने आप थोड़ा सा बनाया भी है बीच में. लेट्स सी इफ यू कैन अंडरस्टैंड इट. A dash is needed to create the explosion into the water. अब ये कोई चीज है जिसकी जरूरत है पानी में एक्सप्लोजन करने के लिए. A dash is needed. फिर दूसरा है the dash enters deep into the water and returns back. कोई चीज है जो डीप पानी के अंदर जाती है और फिर वापस आ जाती है. फिर ये है a 50 meter dash with many dash embedded. एक 50 मीटर का कुछ है, उसमें बहुत सारा कुछ है, वो एम्बेड हुआ हुआ है. ठीक है, अब ये आपने समझ लिया. अब देखो आपको ये वाटर सरफेस है, ये वाटर सरफेस नीचे है. अब ये चीज आपको ढूंढनी है कि पैरा ये कहाँ पे जाके होगा. मैम व्हाट इज मीनिंग ऑफ एम्बेडेड? एम्बेड मींस उसके अंदर दबा हुआ है, एम्बेड हुआ हुआ है. ओके, 50 मीटर लॉन्ग तो एफ में है. हाँ, 50 मीटर लॉन्ग एफ में है. चलो, the reflected sound energy is detected by underwater microphones, ठीक है, called hydrophones embedded in a 50 meter long cable. So underwater hydrophones 50 मीटर. अच्छा, 50 मीटर, जहाँ पे 50 मीटर है उसके बाद आप उसका देखो क्या आंसर बनेगा. 50 मीटर लॉन्ग केबल. केबल आएगा मैम. केबल है मैम. 50 मीटर लॉन्ग केबल. जो क्या एम्बेडेड है उसके हाइड्रोफोन एम्बेडेड है. हाँ, तो 50 मीटर आगे क्या आंसर लिखोगे? अंडर वाटर माइक्रोफोन. लॉन्ग केबल लिख सकते हो, केबल लिख सकते हो. 50 मीटर केबल या लॉन्ग केबल दोनों चलेंगे. 2 वर्ड्स अलाउड है? यस मैम. यस मैम. ठीक है, तो फिर लॉन्ग केबल या केबल दोनों आंसर्स करेक्ट है. ओके, 50 मीटर केबल है, पहला आंसर एक मिल गया. 21st आंसर आपको मिल गया. ठीक है जी मैम. अच्छा, फिर क्या है? विद मेनी डैश एम्बेडेड. तो क्या एम्बेडेड है? विद मेनी हाइड्रोफोन्स एम्बेड हुए ना, तो हाइड्रोफोन्स है 22nd का आंसर.
ओके यस मैम। अच्छा अब फिर ये दो मिले हैं तो इसका मतलब उससे ऊपर होंगे ना बाकी। इसके ऊपर है बाकी। फिर देखो यहाँ पे ऊपर हाई प्रेशर एयर गन इज यूज्ड टू क्रिएट स्मॉल न्यूमेटिक एक्सप्लोजन इन द वाटर। ठीक है, डैश इज नीडेड टू क्रिएट एक्सप्लोजन्स। What is needed to create explosions? Air gun. High Air pressure. gun. Air gun. High pressure air gun. अच्छा तो अगर मैम आपको 3 वहां वर्ड्स पर है, तो अगर आपके 3 वर्ड्स है तो हाई प्रेशर में हाइफन डाल दिया, ये 1 वर्ड गिना जाएगा। One हाई word, प्रेशर एयर गन भी लिख सकते हो। यस मैम एयर गन तो अकेला आ ही नहीं सकता क्योंकि वहां ए दिया हुआ है, तो एन आना चाहिए था ना। एयर गन हाँ तो ए है तो फिर हाई प्रेशर आएगा ही आएगा, है ना। वेरी गुड, यस ठीक है। हाई प्रेशर एयर गन, दोनों आंसर्स वैसे करेक्ट दिए हुए इन्होंने, तो वहाँ एन हो जाए। ए एन दोनों लिखा होना है। मैं आपको बताऊं एक्चुअल एग्जाम में ए और एन दोनों होएगा। अच्छा ओके हाँ चलो। और क्या व्हाट विल इट क्रिएट? एयर गन है, फिर उसमें अच्छा कोई चीज अंदर पेनिट्रेट करती है। द साउंड एनर्जी पेनिट्रेट्स बिफोर बाउंसिंग बैक, फिर वापस आ जाती है। तो क्या पेनिट्रेट करता है और वापस आता है? साउंड एनर्जी। अब मैं आपको ये समझा रही हूँ। आपके ये चारों के 6 मिनट आपको मिलेंगे एग्जाम में इनको देखने के लिए, और आराम से 6 मिनट में हो जाएंगे और पूरे करेक्ट होंगे। अगर आपको डायग्राम आ जाए तो फिर उसको जरूर प्रॉपर टाइम देके करना है आपने। ये भी एक टिप नोट कर लो कि डायग्राम आ गया, घबराना नहीं। डायग्राम मींस आपके वो उतने आंसर्स पूरे करेक्ट जाएंगे अगर आप उसको ढंग से टाइम दोगे। ओके ओके मैम। तो डायग्राम लेबलिंग में घबराना नहीं है। यस मैम 20 सेकंड में मैम एम्बेडेड आएगा या मैम माइक्रोफोन्स आएगा? नहीं, हाइड्रोफोन्स या माइक्रोफोन्स? एम्बेडेड तो वर्ड दिया हुआ है ना उसमें। यस मैम, बट हाइड्रोफोन्स तो उसको बोल रहे हैं, बट उन्होंने इसमें लगाया अंडर वाटर माइक्रोफोन्स लिख दो, अंडर वाटर माइक्रोफोन्स लिख दो, पर उनको क्या कहते हैं ये भी करेक्ट है। अंडर वाटर माइक्रोफोन्स कॉल्ड हाइड्रोफोन्स। आप ये अंडर वाटर माइक्रोफोन्स भी करेक्ट आंसर है और हाइड्रोफोन्स भी करेक्ट आंसर है। ओके ओके मैम, थैंक यू मैम। दोनों करेक्ट है, ठीक है। यस हाँ दोनों आंसर करेक्ट है। गुड 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 दैट यू पॉइंटेड इट आउट। यस ठीक है, अब आगे चलो। ये है समरी कंप्लीशन। समरी कंप्लीशन के लिए टिप है मेरी, या तो समरी या तो ब्लैंक के पहले वाले वर्ड्स का सिनोनिम या एग्जैक्ट वर्ड मिलेगा, या ब्लैंक के बाद वाले वर्ड्स का सिनोनिम या एग्जैक्ट वर्ड मिलेगा। ठीक है, अब जैसे इसको पढ़ो। द boat double RV Kilindi crossed the lake was dismantled and stored in a dash. कोई बोट थी जिसको डिसमेंटल करा गया और स्टोर करा गया किसी चीज में। अब किस में स्टोर करा गया डिसमेंटल करके? देखो कहाँ पे बोट की बात हुई है। डी पैराग्राफ में। कौन से में? डी फॉर डॉग। डी पैराग्राफ। हाँ डी में it was dismantled. Okay, that word dismantled आ गया। packed inside a shipping container. तो dismantle करके किसमें? शिपिंग कंटेनर। हाँ शिपिंग कंटेनर। पैक्ड मींस स्टोर्ड हो गया ना यहाँ पे। यस मैम, स्टोर हुआ शिपिंग कंटेनर। शिपिंग कंटेनर में। वेरी गुड। तो एक आपको ब्लैंक भी मिल गया। अब मैं आपको दूसरा भी टिप दे रही हूँ। अभी मेरे को ये भी ध्यान आ गया। डायग्राम लेबलिंग और फिल इन द ब्लैंक्स 99% करेक्ट जाने के चांसेस हैं अगर आप इनको जितना टाइम स्टिपुलेटेड है क्वेश्चंस के लिए उतना दो। ओके जितना टाइम आपको देना है उतना दोगे, ये करेक्ट जाएंगे। अगला देखो ब्लैंक क्या है। अगला ब्लैंक पढ़ो। द टेक्नोलॉजी दे यूज्ड इज कॉल्ड डैश। ओके जो टेक्नोलॉजी उन्होंने यूज करी उसको क्या कहते हैं? डी में थे ना हम शिपिंग कंटेनर। अब देखो टेक्नोलॉजी की बात कहाँ हुई है, जो टेक्नोलॉजी उन्होंने यूज करी। डी में? ई मैम, ई में देखो टेक्नोलॉजी दे यूज। यस मैम। ओके फोर्थ लाइन कॉल्ड ई पैराग्राफ। seismic reflection. देखो they used a technique called seismic reflection profiling. So I think these 3 words they should be the answer. Seismic reflection profiling. इस टेक्नोलॉजी का ये नाम है, ठीक है, is called that. Okay. Then अगला blank पढ़ो अब। They created sound energy into 1000 to 2000 meters into the bottom of the lake and used separate equipment to collect the return waves.
then the data was analyzed and processed, then the data was analyzed and processed in the dash. फिर डेटा को एनालाइज और प्रोसेस किया गया. अब देखो ये डाटा एनालाइज प्रोसेस कहाँ पे है, ये वर्ड्स आपको मिलेंगे. ये देखो प्रोसेस्ड एंड एनालाइज हो गया, लैबोरेटरी मिल गया. और कहाँ प्रोसेस एनालाइज हुआ? लेबोरेटरी हो गया आंसर उसका. वेरी गुड, मिल गया ना आपको इजीली. अगर आपने उसके पहले वाले वर्ड्स या पीछे वाले वर्ड्स ढूंढे आपको आंसर मिल जाएगा. पैराग्राफ मिल गया आंसर. Scholz also added that they were now building dash view of the sediment or sub image in the bottom of the lake. Dash view of the sediment. Sediment का कौन सा view? View की बात देखो कहाँ हुई. Same ma'am, second line. 3-dimensional perspective. 3-dimensional. हाँ, 3-dimensional. Okay, we are now developing 3D perspective of the lake subsurface and layers of the sediment. ठीक है? Okay. Okay, आगे चलो. Whole set of equipment works well, yet the ship should avoid physical barrier, including tree stumps or dash floating on the surface of the lake. Dash floating, कोई चीज float करेगी. Tree stumps के साथ साथ यहाँ कोई और चीज है जो float करेगी. अब देखो tree stumps कहाँ है, floating कहाँ है. मैम tree stumps का क्या मतलब हुआ? पेड़ के stumps काट के जो उसके stumps होते टुकड़े उसकी लकड़ी के, उसको stumps कहते हैं. Tree stumps ये मिल गया मुझे. फिशिंग नेट. हाँ, Fishing nets. फिशिंग नेट्स है. ठीक है, वेरी गुड. फिशिंग नेट्स आंसर हो गया. ठीक है. यस मैम. यस मैम. अच्छा बताओ, आपको ये मैंने आज बड़ा अच्छा है कि ऐसा पैसेज मिला जिसमें इस तरह के क्वेश्चंस की आपको मैं टिप्स दे पाई हूँ. ब्लैंक्स, डायग्राम लेबलिंग. ओके, नाउ वी कम टू द लास्ट पैसेज. डू यू नीड a 5-minute ब्रेक? पानी पुनी पीने के लिए मैं ऑन रखूंगी मीटिंग. 2 minutes ब्रेक ले लो, जस्ट 2 minutes. ओके. हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है, सॉल्व कर सकते हैं क्या मैम? इसमें हमने ट्रू फॉल्स में वन ऑफ द लार्जेस्ट और इज द लार्जेस्ट वाला बोला था ना. हाँ, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है. हाँ मैं बताती हूँ. ओके, आपकी हमारी ये क्लास है. 1 मिनट मेरा एक सुनो अब. ठीक है, हमारी इस क्लास में 10 बच्चे हैं सपोजिंग. ठीक है, तो मैं कहती हूँ दैट 10 students in the class are the most interactive. ठीक है, 10 students are most interactive. ठीक है. अब क्वेश्चन है जैसे किसी एक स्टूडेंट का X is the most interactive, is one of the most interactive. ठीक है, is one of the most interactive and 10 students are the most interactive. ये यार ये एग्जाम्पल सही नहीं बना. ओके, लेट्स हैव समथिंग एल्स. मैम टॉल हाइट का जैसे. हाँ, ये जो टॉलेस्ट टावर्स है वर्ल्ड के. ओके, 5 टावर्स ये टॉलेस्ट टावर्स है वर्ल्ड के. एंड सी इट इज वन ऑफ द टॉलेस्ट टावर्स इन द वर्ल्ड. आ जाए किसी टावर का नाम आ जाए. CN टावर इज वन ऑफ द टॉलेस्ट टावर्स. ठीक है, एंड क्वेश्चन में है CN टावर इज द टॉलेस्ट टावर. ठीक है, अब द टॉलेस्ट बोला है और अंदर पैसेज में है टॉलेस्ट है कुछ, उनमें से एक है, और क्वेश्चन में है सबसे ज्यादा टॉलेस्ट ये है. तो आप बताओ ये आंसर क्या होना चाहिए? नॉट गिवन. नॉट गिवन, क्योंकि सबसे टॉलेस्ट भी हो सकता है और दूसरे नंबर वाला भी हो सकता है, तीसरे नंबर वाला भी हो सकता है. यस मैम, राइट. समझ आ गया बिल्कुल अच्छे से? हाँ मैम, समझ में आ रहा है ये 99%. बट वो जो 1% है ना, वो ये हो रहा है कि ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो रहा है, फॉल्स नहीं कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो रहा ना. देखो 5 सबसे टॉल टावर्स हैं दुनिया में, उनमें से एक है CN टावर. ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि वो सबसे टॉलेस्ट है. अब सबसे टॉलेस्ट भी हो सकता है ना, अगर 5 सबसे टॉल है उनमें से सबसे टॉलेस्ट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता. मैम तो जितने पैसेजेस किए ना उसमें एक शायद आ रहा है वन ऑफ द लार्जेस्ट और लार्जेस्ट वाला. मैंने बहुत बार देखा भी है. तो जो वन ऑफ द लार्जेस्ट आएगा
हाँ, तो not ये given वाला है। सोचना है ना, कंडीशन नॉट गिवन। हाँ, not given, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। You're welcome. Okay, so see if you want to have water or something, you can have a 2-minute break and we'll continue. नहीं चाहिए तो भी ठीक है। Yes ma'am, yes ma'am, yes. ठीक है, 2 मिनट। 11:14 है मेरे पास, 11:16 पे we'll be back, ठीक है। I also want to go and have water and I'll be back. Okay ma'am. मेरे ख्याल में तो रेडी नहीं है। So I am back. Are you all back? Yes. Yes ma'am. So here we come over to the third and the last passage of the reading, which we had in the mock test this time. And the first set of questions is paragraph headings. Paragraph headings. What I generally do with paragraph headings, first count the number of questions you have. So you have 6 questions. 6 questions means how many minutes in the examination? 9 minutes. 9 minutes. So what you have to do is read all the paragraph headings and translate them. And let's see how much time it takes. Devangini, do it very slowly so that the average student can understand. Read one heading and then translate it. Read the second, translate it. And let's see how much time it takes. Let me set the timer. Be very slow, okay? Okay, ma'am. Yes, start. Paper continue as a sharing or managing must. Paper sharing और managing के लिए continue रहेंगे. पेपर कंटिन्यूड रहा, कंटिन्यूड रहा है, शेयरिंग और मैनेजिंग, क्योंकि शेयरिंग के लिए भी मस्ट था, बहुत जरूरी था, और मैनेजिंग के लिए भी मस्ट था, इसलिए ये कंटिन्यू। तो मैम ये मस्ट की जगह फिर माइट आना चाहिए था ना, पास्ट की बात हुई तो मैम मस्ट भी पास्ट है, मतलब मस्ट था, मस्ट मींस बहुत जरूरी था। ओके, यहाँ पे मस्ट का वो माइट कोई पास्ट टेंस वाला नहीं है, माइट। ओके, मस्ट ये बहुत जरूरी था। नेक्स्ट, I must do it का मतलब मुझे बहुत जरूरी है, मैं ये करूँ। ठीक है, नेक्स्ट करो चलो। Files can be more inspiring rather than disorganizing. Files जो है बहुत inspiring है और disorganized नहीं है, rather than disorganizing. ठीक है, मतलब फाइल्स क्या है? जो हम फाइल बनाते हैं, ढेरी बनाते हैं, उसको फाइल कहते हैं। चलो नेक्स्ट। Favorable situation, why economics use paper pages? क्यों इकोनॉमिक्स जो थे वो पेपर यूज करते थे? क्योंकि वो बहुत फेवरेबल सिचुएशन थी। हाँ, नेक्स्ट। ओवरव्यू ऑफ एन अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, पेपर सरवाइव। ओवरव्यू ऑफ कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन की ओवरव्यू दे रखी होगी जहाँ पे पेपर सरवाइव कर गया। ठीक है, नेक्स्ट। कंपैरिजन बिटवीन इफिशिएंसी ऑफ पेपर एंड यूजिंग ऑफ कंप्यूटर। यहाँ कंपैरिजन दे रखी है कि पेपर ज्यादा इफिशिएंट है कि कंप्यूटर। ठीक है। IMF paperless office seems to be waste of paper. IMF paperless office जो है वो to be waste of
सीम जैसे पेपर वेस्ट मैम, सीम का मतलब दिखा, जैसे ऐसे लगा कि वो वेस्ट ऑफ पेपर है। लगा पेपरलेस ऑफिस जो है वो ऐसे दिखे कि वहां पे वेस्ट ऑफ पेपर है। ठीक है, नेक्स्ट। एग्जाम्पल ऑफ अ फेलियर फॉर अवॉइडेंस ऑफ द पेपर रिकॉर्ड, एग्जाम्पल दे रखी है जहाँ पे फेलियर हुआ है पेपर अवॉइडेंस, पेपर रिकॉर्ड पेपर रिकॉर्ड को अवॉइड करना, जो अवॉइड करा पेपर का रिकॉर्ड और वो फेल कर गया। ठीक है, ओके। देयर आर एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग पेपर इन ऑफिस। एडवांटेजेस क्या है पेपर को ऑफिस में यूज करने के? फाइल्स रिफ्लेक्ट द सर्टेन कंटेंट ऑफ पीपल थॉट्स। जो फाइल है, जो जत्थे हैं, वो बताते हैं सर्टेन कंटेंट जो पीपल्स थॉट, पीपल के थॉट होते हैं, किस हिसाब से अरेंजमेंट करी होगी शायद वो दिखाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। जॉय ऑफ हैविंग पेपर स्क्वायर इन फ्रंट ऑफ कंप्यूटर। जॉय ऑफ हैविंग, खुशी जो होती है पेपर स्क्वायर इन फ्रंट ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, उसको रखने की कंप्यूटर के आगे पेपर का स्क्वायर पेपर रखने की। ठीक है, आपको लगे हैं 3 मिनट्स लगे हैं, बिकॉज हम थोड़ा स्लो भी गए हैं और हमने पूरा अच्छे से इसकी ट्रांसलेशन करी है। तो मैक्सिमम आपको 3 मिनट्स लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे। ठीक है, 6 क्वेश्चंस थे और 4 एक्चुअली हेडिंग्स भी एक्स्ट्रा थी, 10 हेडिंग्स है। इट्स ओके। नाउ वील रीड पैराग्राफ ए, ओके, and as you stumble across any heading that you have spoken, we'll leave that para, mark the answer, go to the next para. Okay, अब ये पैरा पढ़ना है। चलो। Computer technology was supposed to replace paper, but that hasn't happened. Every country is in Western world use more paper today. 1 second. Yes, now speak. Yes. Okay. Computer technology was supposed to replace the paper. वो replace कर देते पेपर को, but it hasn't happened. ऐसा हुआ नहीं है. Every country is in the Western world use more paper today on a per capita basis than it did in the 10 years ago. ऐसा बोल रहे हैं, पहले जितनी comparison करते हैं उससे ज्यादा पेपर यूज होती है। The consumption of uncoated free sheet paper, for instance, most common kind of office paper, rose almost 15%. उसकी बढ़ गई है office paper की usage. आपको आंसर मिल जाना चाहिए। Yes, ma'am. It is ये overview of unexpected situation of paper survive. क्योंकि कंप्यूटर उसको पूरा रिप्लेस करने वाले थे, पर वो सरवाइव कर गया, बच गया। ठीक है, सो फर्स्ट पैराग्राफ ए की हेडिंग जो है 4th नंबर है, ओवरव्यू ऑफ एन अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन जहां पेपर सरवाइव करा। अब बी पैराग्राफ पढ़ो। पैराग्राफ बी, इन केस ऑफ पेपर मेड मोस्टली equivalently, the myth of the paperless, okay, the myth of a paperless office, ये myth है paperless office by 2 social scientists, Mr. Sellen and Richard. They begin the book with account of study they conducted at the International Washington DC economists at IMF, spend most of their timing in writing and reporting. मैम इसमें शायद वो इकोनॉमिस्ट वाला था पैराग्राफ बी। 1 मिनट मैम। favorable situation economist. Yes ma'am. Yes, 3rd is the answer. Very correct. That is the answer. Yes ma'am. So go to C. Without paper, this kind of collaborative and interactive work process would be much more difficult. पेपर के बिना ये प्रोसेस बड़ी डिफिकल्ट होती है। मिस्टर सैलन एंड हैपर, पेपर हैज यूनिक सेट ऑफ अफोर्डेंस दैट अ क्वालिटी परमिट टू स्पेसिफिक काइंड ऑफ यूसेज। पेपर इज टेंजिबल। लगा कोई? 8 ma'am. Yes ma'am, it is 8-1. There are advantages of using the paper in the office. Very good. चलो आगे। आगे D number, paper is unable to certain kind of things. Picture for instance, top of your desk. मैम था ना वो पिक्चर लगाने। Ma'am, kind of thinking. Piles reflect certain context in kind of thinking. हाँ मैम। मैम thought वाला है मैम। Yes ma'am. बिल्कुल वही, piles can be more inspiring rather than ये आंसर। Yes no ma'am. Second ma'am. नहीं मैम, नहीं मैम। No ma'am. ये वो वाला है। ये थिंकिंग बताता है, थॉट बताती है आपने किस तरह से ऑर्गेनाइज thinking of people. Okay. Yeah, piles reflect certain context in people's thought.
ओके, तो दैट इज पैराग्राफ। कौन से पैराग्राफ का हेडिंग है ये 9th का? नहीं, डी का। नहीं, यस मैम, डी का। मैम डी की हेडिंग तो सेकंड आएगी ना मैम? डी का हेडिंग बी मोर इंस्पायरिंग रादर देन द डिसऑर्गेनाइजिंग। हाँ, एक मिनट, इसका डी का तो सेकंड है आंसर। यस मैम। मैम वो पहला थिंकिंग की वजह से हमने तो डायरेक्ट डाल दी। थर्ड नहीं है इसका, बी का। थर्ड तो हुआ है नहीं, अभी अपना। पढ़ो, आपको पता यस मैम, पढ़ती हूँ। हाँ, चेंजेस आर दैट यू हैव कीबोर्ड and computer scenes of one side and the clear space roughly 18 inches of square in front of your chair. What covers the rest of the desktop is probably pile of paper, journal, magazines, binder, postcard, video types, and all the other article knowledge economy. The piles look like a mess, but it aren't. The group of Apple Computer studies piling behavior several years ago, and they found even the most disorderly piles usually make the preference senses of the piler. Make perfect sense to the piler. Okay. Yes, ma'am. तो इसमें वो है, piles can be more inspiring than disorganizing. Disorganizing, they can be more inspiring. हाँ, आगे पूरा जिस्ट में से इसका आंसर आपको मिल जाएगा। आंसर 2 है। ओके, यस मैम, अंडरस्टूड। ओके, अब ई में चलो। बट व्हाई डू वी पाइल डॉक्यूमेंट इंस्टेड ऑफ फाइलिंग देम? हाँ, because the pile represent the process of active ongoing thinking. thinking वाला यहाँ पे आंसर। Yes ma'am. अगला पढ़ो। The idea of paper facilitate highly specialized cognitive and social process is far crying for the way we have historically thought about the stuff. Paper first begins proliferate in the workplace in the late 90s, and the part of that moves toward systematic management. 1 minute, ma'am. Ma'am, first wala aega fir iska answer to ma'am. Paper continued as a sharing example of failure for avoidance. Yes, the answer answer is first. Okay, answer is first ma'am. Okay, so see we have done 9 minutes मैंने लगाया था। 9 minutes में से हमारे, क्योंकि हमने थोड़ा सा स्लो गए हैं, बीच में एक्स्ट्रा भी पड़ा है, बट हमने अभी 2 मिनट बचा लिए हैं। इट हैज टेकन टोटल 7 मिनट्स। जहां पे भी आपको हेडिंग मिलेगी ना, वहां पे आपने अगला पैरे पे चले जाना है। ठीक है, सो दैट इज हाउ यू डू इट। नॉट बैड। अब ठीक है, 2-4 आंसर्स गलत भी हो जाएंगे, उसकी वरी मत करना। देखो, मिनिमम 6 लेने के लिए आप 17 रॉन्ग कर सकते हो आंसर, और 7 लेने के लिए 10 रॉन्ग कर सकते हो। ठीक है, तो आप उस वे में अगर सोचोगे ना, तो आपको आपका जो पैनिक है वो पैनिक कम हो जाएगा। ठीक है मैम, यहाँ पे वो थिंकिंग वाली दोबारा आती ना, तो हम वो उसको कट करके दोबारा से लिख ही लेते, वो सही होनी थी। लिख लेते, वो भी हो जाता। ठीक है, चलो। हाँ मैम। अब समरी पे आ जाओ। अगले क्वेश्चन है समरी। ओके, yes ma'am. Compared with digital documents, paper has several advantages. First, it allows clerks to work in a dash way among colleagues. अब ये अब क्लर्क्स वर्ड है, कलीग्स वर्ड है, पेपर और डिजिटल डॉक्यूमेंट्स के कंपैरिजन है। देखो कहाँ पे मिलेगा ये क्लर्क्स वर्ड? Maybe in C paragraph. C. Maybe. C. Ma'am, in the first line, C paragraph. Collaborative. Yes, ma'am. Okay. Collaborative and interactive work. Without paper, this kind of collaborative and interactive work process would be much more difficult, and the जो है वो amongst the colleague. हम सिर्फ एक collaborative. Compared with digital documents, paper has several advantages. First, it allows clerks to work in a dash way among colleagues. Collaborative. In a dash way among colleagues. Interactive way. Collaborative ही आंसर, collaborative way among colleagues है, और colleagues फिर ऊपर वाले पैरे पे बात हुई होगी। Organizing, saving, discarding, he can, ऐसे सब लिखा तो है ऊपर। हाँ मैम, इसमें 3 words का है, तो फिर इसमें मैम आ सकता है मैम या तो आंसर। क्या आ सकता है और आंसर?
मैम आंसर तो यही है, कोलैबोरेटिव एंड इंटरैक्टिव, बिकॉज क्योंकि मैम इसमें 3 वर्ड बोला है। हाँ तो ठीक है, कोलैबोरेटिव एंड इंटरैक्टिव भी करेक्ट हो जाएगा। हाँ 3 वर्ड्स तीनों देने हैं, कोलैबोरेटिव एंड इंटरैक्टिव दोनों, तीनों 2 वर्ड्स। ठीक है, ओके ये वाला आंसर आ जाएगा, कोलैबोरेटिव एंड इंटरैक्टिव। यस ओके, अब नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट ब्लैंक। ओके, next is, next paper is not like the virtual digital versions, it's dash। पेपर वर्चुअल डिजिटल वर्जन की जगह नहीं है, इट इज डैश, पेपर डैश है। अब देखो कहाँ पे है, पेपर इज मैम इसके नीचे टेंजिबल, इसके नीचे है टेंजिबल। यस, ये है टेंजिबल इज द आंसर। ओके यस मैम। हाँ आगे पढ़ो पहले। हम फ्लेक्सिबल क्यों नहीं होगा? हाँ टेंजिबल है ना, पेपर वर्चुअल डिजिटल वर्जन्स की तरह नहीं है। टेंजिबल, टेंजिबल होता है जिसको टच कर सको। आप डिजिटल वर्जन्स को टच नहीं कर सकते, इसको आप टच कर सकते हो। ठीक है, फाइनली बिकॉज इट इज डैश, note or comments can be effortlessly added as related information. Finally because it is dash, notes और comments डाल सकते हैं। Finally because it is what, देखो यहाँ पे मैम टेलरेबल लिखा है। टेलरेबल है, एडिटेबल है, एडिटेबल है वो टेलरेबल मतलब में। and it's tailorable, yes you ma'am. can easily annotate it, scribble on it। okay, तो वही लिखा ना, you can add it something, तो ये है tailorable, it is tailorable। ठीक है, however shortcomings comes at the absence, last वाला blank है, however shortcomings come at the absence of convenience on task which is for a dash, which is for a dash। shortcoming means जहां इसकी कोई मुश्किल आती है, वो कहाँ आती है, जब कोई टास्क होता है which is for a dash together, which is for group a of people, for a group of people है ना, which is for a together, तो जच ही नहीं रहा ना मैम। हाँ वो लास्ट वाली लाइन है, पैराग्राफ लास्ट 2 लाइंस। यस मैम, बट द lack of the effortness that really matters, group of people। ठीक है, group of people है। ओके, अब लास्ट जो सेट ऑफ 3 क्वेश्चंस है, दैट इज MCQs। MCQs को 2 तरह से करते हैं। एक होता है कि आप ABCD सारे पढ़ के क्वेश्चन पढ़ो, ABCD सारे पढ़ो और फिर अंदर ढूंढो क्या आंसर है, क्वेश्चन के कीवर्ड ढूंढ के। यस गगन, यू वांट टू से समथिंग? हेलो, यस यस बोलो। यस मैम, ये समरी में जो फर्स्ट ब्लैंक है, दैट वाज नॉट क्लियर टू मी, मुझे इसका कुछ समझ नहीं आया। First it allows clerks to work in a dash way among colleagues, in a dash way among colleagues। किसी भी जगह पे क्लर्क्स का कुछ भी जिक्र नहीं किया गया है, तो मैम 36 का क्लियर करना मैम, थोड़ा उसमें डाउट है, मतलब इंटरनेट का कनेक्शन। पहले हम 34 पे आए हैं ना, 34 क्लियर करते हैं। ओके ओके। जो ऑफिस में काम करते हैं लोग, उनको क्या कहते हैं? एम्प्लॉइज। जो ऑफिस में काम करते हैं, क्लर्क। ऑफिस में काम करते हैं, पर्सन उस जॉब इज टू कीप रिकॉर्ड्स। और वहां पे क्या है कि जो पैसेज है उसमें क्या है, जो पैसेज है उसमें क्या है, जो पीपल वर्किंग इन द ऑफिस, तो वो क्लर्क उन्होंने वैसे लगा दिया है। यहाँ पे क्लर्क वर्ड एज सच नहीं है, बट दे गो बैक टू देयर ऑफिसेस, तो ऑफिसेस में जॉट डाउन कमेंट्स और वो करते हैं, सारे क्लर्क्स ही हो गए ना गगन? ओके that is why the clerks word they have used in the question, and यहाँ सारा office work ही चल रहा है। okay, and without paper this work would be much more difficult। और यहाँ पे पेपर को दूसरे काम के साथ कंपेयर करके ये बात करी गई है, तो कोलैबोरेटिव एंड वही वर्क आएगा
Compared with digital documents, paper has several advantages. First, it allows clerks to work in a dash way among colleagues. तो collaborative and वो है. Digital documents से comparison ही आ रहा है ना. The process would be much more difficult without paper. ये जो सारा काम हो रहा है ये बहुत difficult होगा क्योंकि ये सारा काम पेपर की वजह से हो रहा है, पहले ऊपर बताया, और विदाउट पेपर ये बड़ा डिफिकल्ट होगा. So paper has unique set of affordances. तो पेपर के क्या क्या फायदे हैं, उनमें से सबसे पहला यही है कि collaborative and interactive work ये होएगा. ठीक है. And 36 वाला है because it is dash. It is dash. It is 36 में किसी ने बोला था because it is tailorable है ना, because इसमें देखो tailorable है, tailorable के बाद लिखा है we can easily annotate it, scribble on it as we read, और उसमें query में question में लिखा हुआ है because note or comments can be efficiently added as related information. तो notes और comments आप उस पे scribble कर सकते हो. Scribble means फटाफट pencil से लिख लो. Yes ma'am. तो इसलिए वो 36 वो है. I hope it is clear. दोनों answers clear है? Yes. क्लियर है, बट मैम इसमें मोस्टली आंसर हमको सी में से मिल रहे हैं ना, तो वहाँ पे जाके डाउट नहीं करना है ना खुद पे कि नहीं एक पैसेज में से कैसे सारे आंसर मिल सकते हैं. हाँ, कोई मिल सकता है. देखो जब आपको समरी आएगी ना, समरी मैंने देखा है कि कई बार समरी बहुत स्कैटर्ड होती है. भाई कोई एक ब्लैंक फर्स्ट पैरा में है, कोई एक ब्लैंक चौथे पैरा में है, लास्ट ब्लैंक 9th पैरा में, ऐसे हो जाती है. बट जनरली 70 to 80% of the times आपको कट्ठे आंसर्स ब्लैंक्स के सारे मिल जाएंगे within a paragraph or 2 paragraphs. मैम एक्सक्यूज मी, इसमें मेरा एक ऑब्जर्वेशन है. आई डोंट नो 90% सही हो गलत हो, बट जब भी सबसे पहली समरी आती है, सबसे पहली पैराग्राफ शुरू होने से तुरंत, अभी हमारे पहले ये थे हेडिंग ना हो, डायरेक्टली भी हो, तो वो शायद स्कैटर्ड मिलेगी. ओके. और अगर वो पीछे आएगी, किसी क्वेश्चन के पीछे आएगी, बीच में आएगी, तो 100% उसके चांसेस है कि वो बीच में मिलेगी. I think what you are saying, when I relate back to the readings I have done, I think that's a very good application. Very good. Okay, ma'am. I can relate back. Yes, I have noted that also. कि summary right in the beginning, it will be scattered. But after a set of questions, it will be from a 1 paragraph or 2 paragraphs. Very good. We'll observe it. All of you in the class. Okay? Yes, ma'am. Yeah, please observe this finding and this will be very helpful. ठीक है? और मैम इसमें है ना, समरी में ऊपर टाइटल दे रखी है कभी कभार, जैसे एडवांटेजेस ऑफ वाटर सैलिनेशन, डिसैलिनेशन प्लान, तो हमें वो डायरेक्ट उसी के ऊपर जंप करनी है. हम हर जगह ढूंढते हैं. Very good. Yes, very good observation. Devangini, I'm really proud of you. Good. Thank you, ma'am. Thank you. Okay. अब चलो MCQs में. MCQs में 2 मेथड होते हैं. First is जैसे क्वेश्चन पढ़ो. What do the economists from IMF say that their way of writing document? वो जो IMF के, एक मिनट में म्यूट कर रही हूँ सबको. जो IMF के जो इकोनॉमिस्ट हैं वो क्या कहते हैं अपने वे ऑफ राइटिंग डॉक्यूमेंट्स के बारे में. ओके. दे नोट डाउन देयर कमेंट्स फॉर फ्रीडम ऑन द ड्राफ्ट्स. पहले अपने कमेंट्स नोट डाउन करते हैं ड्राफ्ट्स पे. दे फिनिश ऑल राइटिंग इंडिविजुअली. पहले अकेले पूरी राइटिंग कंप्लीट करते हैं. दे शेयर आइडियाज बिफोर एन इलेक्ट्रॉनिक वर्जन इज मेड. पहले इलेक्ट्रॉनिक वर्जन बनाने से पहले अपने आइडियाज शेयर करते हैं. They use electronic version fully. वो पूरी इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ही यूज करते हैं. अब इकोनॉमिस्ट है, IMF है, आपकी कीवर्ड्स कौन से पैसेज में इकोनॉमिस्ट एंड IMF? बी में दे रखा है. कौन से? बी फॉर बॉल. Oh yes, IMF है. Okay. And the question is कि उनके राइटिंग डॉक्यूमेंट्स के मेथड के बारे में वो क्या कहते हैं. Okay. लास्ट मैम वो शेयर करते आइडिया. कहाँ पे? डी पैराग्राफ में. The economists bring draft of reports to conference room. Spread out the relevant pages and negotiate changes with one another
They go back to their offices and jot down comments in the margin, taking advantage of the freedom offered by the informality of the handwritten note. Then they deliver the annotated draft to the author in person, taking him page by page through the suggested changes. At the end of the process, the author spreads out all the pages with comments on his desk and starts to enter them on the computer, moving the pages around as he works, organizing and reorganizing, saving and discarding. Okay, so अब ये लास्ट वाली जो चीज है कि वो फाइनल वर्जन बन रही है, ठीक है, फाइनल वर्जन एट द एंड ऑफ द प्रोसेस. एट द एंड ऑफ द प्रोसेस मींस फाइनल वर्जन बन रही है. तो ऑथर क्या करता है, सारे जो पेजेस हैं हैंड रिटन वो स्प्रेड आउट करता है अपने डेस्क पे और उनको एंटर करता जाता है अपने कंप्यूटर में, जो इलेक्ट्रॉनिक वर्जन बनाने से फाइनली वो बना रहा है. तो ये कौन सा आपको जच रहा है? पी मैम. हाँ, visualize the electronic वाला. They share ideas before electronic version is made. Yes, ये नहीं आएगा? yes ma'am. C है, C है C है आंसर, C है. Okay. देखो सारा कुछ ही, but this is the most suitable. ठीक है? And then 39th question देखो. What is the implication of the piles mentioned in the passage? Piles की क्या implication है passage में? जो piles की है, पहले question पढ़ लो अच्छे से. What is the implication of the piles mentioned in the passage? They have an underlying order. Piles का एक underlying order है. They are necessarily a mess. ये एक mess है. They are in time sequence order. ये time sequence के order में है. They are in alphabetic order. Okay. Let's go to the passage D. D में देखो, यहाँ पे piles की बात करी हुई है. Yes, ma'am. Third line. Generals ये सारे हैं. The piles look like a mess, but they aren't. अब एक एलिमिनेट हो गया. Yes, ma'am. B एलिमिनेट हो गया. वो कह रहा है they are necessarily a mess, पर ये कह रहा है mess लगते हैं पर है नहीं. तो B एलिमिनेट हो गया. ऐसे एलिमिनेशन मेथड भी कर सकते हो. Now B is not the answer, you know that. Okay, आगे चलो. When a group at Apple Computer studied piling behavior several years ago, they found that even the most disorderly piles usually make perfect sense to the piler, and that office workers could hold forth in great detail about the precise history and meaning of their piles. The pile closest to the cleared 18-inch square working area, for example, generally represents the most urgent business, and within that pile, the most important document of all is likely to be at the top. Piles are living, breathing archives. Over time, they get broken down and resorted, sometimes chronologically and sometimes thematically. तो एक और था, they are in time sequence order. Time sequence होता है chronological order, पर ये हमेशा time sequence order में नहीं है, ये कभी-कभी theme order में भी है. तो इसलिए वो भी eliminate हो गया, C भी eliminate हो गया, और alphabetic order का है कोई कहीं पे? They are in alphabetic order. कहीं पे भी नहीं है. तो D भी eliminate हो गया. तो they have an underlying order तो है, तो A is the answer. ठीक है? एलिमिनेशन मेथड कराने के लिए आपको बताया कि ये बिल्कुल नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, तो ए आंसर है. अर्जुमन क्लियर हो रहा है? यस मैम. क्रोनोलॉजिकल मींस टाइम के हिसाब से. देखो यहाँ पे सीक्वेंस, क्रोनोलॉजिकल टाइम सीक्वेंस है ना, सी वो भी नहीं है, क्योंकि कभी ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, कभी थीमेटिक ऑर्डर है. वो कह रहे हैं वो सिर्फ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, दे आर इन टाइम सीक्वेंस ऑर्डर है, वो नहीं है ना, और भी ऑर्डर्स हैं उनके, तो ये नहीं हो सकता ना सी. हाँ, और ये देखो क्रोनोलॉजिकल एज क्या होती है और एक बायोलॉजिकल एज होती है. ठीक है, वन इज बायोलॉजिकल एज, वन इज क्रोनोलॉजिकल एज. अब मेरी क्रोनोलॉजिकल एज है 60, बट इफ आई एम हेल्दियर एंड मोर एक्टिव देन माई एज, तो मेरी बायोलॉजिकल एज उससे कम हो गई ना. ठीक है, तो ये क्रोनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल, ये डिफरेंस कराने के लिए आपको कराया. क्रोनोलॉजिकल होता है टाइम के हिसाब से जो चलता है एक्चुअल. ठीक है. Okay, next is according to the passage. ये आंसर मिल गया आपको, A है. ठीक है, next लास्ट वाला पढ़ो. According to the passage, what is the reason why the paper has not been replaced by electronic vision? क्या कारण है कि पेपर रिप्लेस नहीं करा गया इलेक्ट्रॉनिक वर्जन से? ठीक है, 4 है ऑप्शंस, देखो बताओ.
डी मैम। हाँ, पर पेपर इनएक्सपेंसिव टू बाय है, इसकी वजह से नहीं हुआ है, ये आउट करो। यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे चलो उसके बारे में कुछ है नहीं है कि इनएक्सपेंसिव के बारे में है नहीं है, ए नहीं हो सकता। बी है, वेस्टर्न कंट्रीज में मैनेजमेंट थ्योरीज में कंट्रीब्यूट करा है, उसके बारे में कुछ नहीं है। ठीक है, it is collaborative and functions as an instrument of management. ये लास्ट लाइन देखो, paper was important not to facilitate creative collaboration and thought but as an instrument of control. ठीक है, तो instrument of control is instrument of management. तो डी आंसर है, वहां से आंसर है, पर आप बाकी भी देखोगे तो बाकी एलिमिनेट हो जाएंगे बिकॉज उनके बारे में कुछ है नहीं है अंदर। ठीक है मैम 37 का आंसर क्या था मैम? 37 का आंसर था ग्रुप ऑफ पीपल। सी था मैम, ग्रुप ऑफ पीपल। ग्रुप ऑफ पीपल। मैम 38 वाला बताओ एक बार। 38 का आंसर है, 38 का सी है मैम। सी, दे शेयर आइडियाज बिफोर ई वर्जन इज मेड। यहाँ पे है ना, लास्ट में वो शेयर आइडियाज करते हैं। यहाँ पे ये वाला डी का, ये बी का एंड है यहाँ पे, ये ई वर्जन एंड में बनता है, उससे पहले उनके आइडियाज शेयर होते हैं पेपर पे। ठीक है, ये सारा आप डी पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा। सो इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। आज हमने पूरी रीडिंग करी है, तीनों पैसेजेस करे हैं एंड इट्स क्वाइट लेट, 11:45 है, तो दूसरी क्लास आज कर दे, ओमिट कर दे। मैं आपको शेयर कर देती हूँ कुछ ग्राफ्स, आप उनको पढ़ो और फिर कल या परसों एक दिन डिस्कशन कर देंगे, कल करा देंगे। ठीक है, कोई भी एक मैम आप कोई भी कल इंद्रूप सर विल टेक अ क्लास ऑन मैप्स। मैम मेरी रिक्वेस्ट है, एक मैम वो बटरफ्लाई लाइफस्टाइल ऐसा कोई ले लीजिए ना जो एक्टिव में लिखना हो, क्योंकि मैं खा जाती हूँ, मैं भूल ही जाती हूँ ऐसे लिखना। अभी कल तो मैप की है क्लास भाई, मैप में। ठीक है, अच्छा मैप, हाँ मैम मैप कर लेंगे, कोई मैप कर लो कल। वो आज उसने लेनी थी पर आज बहुत लेट हो गया, उसकी क्लास भी लंबी खिंचनी है, so it will be very late and we'll have the class on graph tomorrow. ठीक है मैम, साइड बाय साइड आई हैड मेड ऑल द आंसर्स विजिबल इन माय लैपटॉप। I want to show you. हाँ दिखाओ, can you share the file here? Yes ma'am, I will definitely share the file here. नहीं अभी शेयर कर सकते हो ये अभी मैम, अभी हाँ स्क्रीन शेयर नहीं होगी, मैं पूरी फाइल ही शेयर कर देती हूँ मैम, क्योंकि मैं मोबाइल से ऑपरेट कर रही हूँ और मैंने सारी चीजें लैपटॉप में मार्क करी है। अच्छा ओके, 1 मिनट मैम। आपने बाकी भी किसी रीडिंग की करे आंसर्स मार्क? मैम करी तो है, पर मैंने लैपटॉप में कहाँ सेव करी, मुझे सिर्फ देखनी पड़ेगी, बाकी मैं करती हूँ हमेशा। मैम किरण मैम नहीं लेगी क्लास? कौन सी मैम? मैम किरण मैम। मैं हूँ। ये हो गया। आपको क्या लगा मैं कौन हूँ? अरे अच्छा मैम, मैंने सोचा रीडिंग वाली मैम ही है। अच्छा, तो फिर तो आपको फर्क ही नहीं पता चला, ये तो बड़ी अच्छी बात है। Yes ma'am, voice is ma'am quite bit similar. अच्छा ओके। My class is very interesting. इंटरेस्टिंग लगी आपको? Yes ma'am. Yes ma'am. पता है रीडिंग करवाती हूँ ना मैं, जब ऑफलाइन क्लासेस में भी करवाते थे, मैं करवाती हूँ, मेरा बेटा करवाता है ना, तो वो जो बच्चे है ना वो रीडिंग कहते हैं अब तो दिल कर रहा है रीडिंग करने का, और वो बस दैट इज द एम कि एक रीडिंग और पकड़ो और उसको कर दो फटाफट, और फिर देखो आप में कुछ इम्प्रूवमेंट आई है इस क्लास के बाद के नहीं। दिवांगनी आपने शेयर कर दी फाइल? जी मैम। मैं सबको शेयर कर दूंगी हर ग्रुप में दिवांगनी वाली फाइल, आप उसको देख सकते हो, सारे आंसर्स मार्क्ड है। और टुमारो वील हैव द क्लास ऑन मैप्स, तो जीटी वाले कल फिर या तो पहले मैं जो कंबाइंड क्लास है वो ले लूंगी, थोड़े एसेस डिस्कस करा दूंगी, और सेकंड क्लास फिर ग्राफ की हो जाएगी। कल स्पीकिंग है, स्पीकिंग थर्सडे को कर लेते हैं। ओके
हाँ मैम ठीक है। मैम जीटी की रीडिंग काफी दिन से नहीं किया मैंने, तो कोई रीडिंग हमारे पास जीटी वाली सिर्फ हो सकती है? जीटी वाली ये बेटे सिमिलर है, जीटी वाली रीडिंग कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा जी, हाँ कुछ ठीक है मैम। सिमिलर है ये रीडिंग्स। आप अपनी हाँ ना जी। जीटी वाला जो ग्रुप है ना, वो दैट्स अ वेरी इंटरैक्टिव ग्रुप, बिकॉज हाँ एक जी। ही ग्रुप है उनका। तो आप उसमें Okay. अगर रीडिंग का नंबर डालोगे और क्वेश्चन की क्वेरी डालोगे ना, यू विल सी दैट समवन और द अदर विल रिप्लाई, Yes, definitely. and you will Yes. definitely get an explanation of that answer. मैम Okay मैम। Yes. मैम इंद्रुप सर की क्लास हम लोग कर सकते हैं क्या एक बार? वो मैप्स की है, आपको मैप आपसे करने बहुत हैं? सुना हुआ नहीं, कोई भी आपसे बहुत सुना है, मतलब तो वी वांट वन सेशन हम लोग भी करें कुछ। आप जीटी के स्टूडेंट हो काजल? जी मैम। जीटी का उसको मैं आपका वो फॉरवर्ड कर दूंगी ये रिक्वेस्ट। तो वीक में एक दिन सर की क्लास लगवा दो प्लीज। वीक में तो मैं नहीं प्रॉमिस कर सकती हूँ, यहाँ पे लॉकडाउन 2 वीक में करवा दो फिर। एक बार अभी रीडिंग उसको लेने मैं को बोलो, रिक्वेस्ट कर रही हूँ। बहुत अच्छे हैं। हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने YouTube पे देखा था, उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाते। हाँ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने बहुत सुना है मैम, बट कोई बार फेस नहीं किया है। चलो उसको मैं वो रिक्वेस्ट एक्सपीरियंस फॉरवर्ड करना कर है देती हूँ, तो वो कभी कुछ करवा देगा, कोई ना कोई टिप्स वाली क्लास करा देगा आपको रीडिंग की, कंबाइंड क्लास। ठीक है, थैंक यू मैम। मैम मैंने भेज दिया है, आप देख लेना। मैंने भेज दिया। सबको शेयर कर दूंगी, एंड आई विल बी शेयरिंग अराउंड 30 ग्राफ्स जो आपने पढ़ने हैं। तो थर्सडे या फ्राइडे को हम फिर ग्राफ कर लेंगे डिस्कस साथ में। कल आपका मैप होना है ना, कल मैं मैप शेयर कर देती हूँ, आप पढ़ लो जब तक। ठीक है, ओके मैम। चलो ओके, थैंक यू बाय मैम। मैम। थैंक यू मैम। बाय मैम। बाय। Thank you.